Once you are into civil services, the way society looks at you, it totally changes. So a lot of social prestige is actually attached with it. Railways has got a twin function. Correct. It is not only a commercial organization, but it is, since it is under Ministry of Railways, it is a government organization. It has got a welfare and social role also to play. Correct. And that has to be balanced. Ministry of Railways does not have sovereign powers to borrow from market. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास में पावर्स हैं, हमारे पास में नहीं है. वन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज दैट मसूरी पार्ट ऑल्सो. लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें इनिशियल फाउंडेशन कोर्स इज देयर फॉर ऑल सर्विसेज. सारी सर्विसेज होती हैं उसमें, IAS, IPS एंड अदर एलाइड सर्विसेज. सभी का एक 3-3.5 महीने का कोर्स होता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी एंजॉयबल. टिकट के प्राइसेस होते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने की ट्रेन की जनरल टिकट ये है, फर्स्ट AC टिकट के प्राइसेस ये सब चीज़ों में अकाउंट सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, या इज देयर सम अदर कैडर ऑल टुगेदर हु डिटरमाइन्स these small decisions? Today with us we have Vineet Dwivedi, a 1998 batch Indian Railway Account Service Officer who is currently serving as the Executive Director of Finance in the Research, Design and Standards Organization. Prior to this, he has worked at SAIL and Indian Forest Services before joining the Railways. In his journey of 25 years in the Railways, he has held various portfolios, one of the prominent one being his deputation in the Center for Railway Information System in Delhi. In this episode of Sushasan, we will be discussing the roles and responsibilities of the Indian Railway Account Services Officers, the need for building systems in large organizations like the Railways, the IT reforms that Railways has seen recently, and much more. Do watch out for this episode of Sushasan. A very warm welcome Vineet जी to this episode of Sushasan. मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आपको आज होस्ट कर पा रहा हूँ, एंड काफ़ी कुछ डिस्कस करना है आपके साथ अबाउट रेलवेज, अबाउट द इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, योर टाइम सर्विंग in IRAS for the last 25 years. So all of that we'll cover as time progresses. But first would want to know, what was your key motivation of joining the civil services? क्या चीज़ें थी जिससे आपको लगा कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है? Thank you very much, Venkatesh, first of all, to invite me and have me here. It's a pleasure, and it's a very good thing that you are actually trying to talk about railways, my service, and whatever work that we are doing. So you asked that what is the key motivation for me to join civil services. If you see that when we were preparing for civil services examination and interview, this was the first question that we would prepare, because we were almost certain, it was expected that whenever we'll face the interview, probably this is the question that will be asked to us. What is your, why do you want to join civil services? And at that time, I think most of the coaching institutes, if you see, they will prepare a standard answer for that. And they will, we'll understand it this way, that they'll say, I want to join civil services because it's one of the good services, and I want to serve the people of India and people of our country. And this service actually provides that opportunity and space for me to do that. Right. But if you ask me, frankly, you can do a lot of good work and you can serve the country even outside the civil services also. Right. So that probably was good for interview, and probably, I don't know, I don't remember, but I might have also said the same thing in the interview if I were asked. But for me, if you talk honestly, then the prime motivation for me for joining civil services was that is one of the good class 1 service. Right. You get an entry at the highest level of government that you can get. Otherwise, all other posts that you get by promotions only. This is the highest level of entry. You get a very secure and stable career during your this service. And the foremost thing for me was, and for I think many of the people, it was the social prestige that is attached with this service, and that is what draws you to this service. Because once you are into civil services, the way society looks at you, it totally changes. So a lot of social prestige is actually attached with it. And in India, we have a mindset. I think I'll quote just one quote by
a book, Mr. Sudhir Kakar, he has written a book about Indians and Indian, psyche and psychology. He's tried to explore the way Indians think and the way, what kind of people we are. It's a very good book. He just passed away recently. So I got hold of his book and read. And in one of the, initial chapters itself, he says that in India, everybody wants to be somebody. That is the thing. And this service, I think, has the capacity to turn a nobody into somebody. And that is, I think, that is in subconscious mind, that is there. And, that draws people to this service. So probably my motivation was also that only. So विनीत जी, आपने IIT दिल्ली से बीटेक करी एंड उसके बाद सेल में आपने काम किया था बोकारो स्टील प्लांट में जाकर के एंड ऑल्सो गॉट इनटू द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. सो अगर उसका थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए कि क्या डिसीजन पॉइंट्स थे कि ये दोनों बड़ी ही कोवेटेड टाइप की नौकरियां होती हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर में हो गया, एक आपके अगेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज इटसेल्फ, एंड देन व्हाट वाज द मोटिवेशन कि इवेंचुअली फिर से एग्ज़ाम दे करके सिविल सर्विसेज में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में जाने का उद्देश्य आपने पकड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए. Actually, I did my BTech, and at that time, through campus, selections, I got into Steel Authority of India Limited, and I was allotted Bokaro Steel plant, so I had to join there. But as I told you, in the final year itself, I had taken a decision that I have to try civil services. I joined because I wanted a job, so I joined Steel Authority, and I was allotted center plant there. अच्छा. And then from there, I tried civil services one or two times, but I was not getting through. So I thought that I have to take a plunge and I have to resign from the service. I resigned from SAIL just to take civil services seriously, and then I came back to Delhi, again to IIT Delhi. And then I took both civil services as well as forest services for the first time. And luckily I got into both, examination. I got selected. In forest, I got All India 5th rank. Wow. And in civil services, I got, in that year, I got 212 rank. And, when you take civil services, you try for IAS only, but, the seats are very limited. So you end up in one of the allied services. So I joined initially forest service because by that time, I think the result of civil services had not come out. I was there, but after these all India services, IAS, IPS and IFS, you get cadres, and cadre is very important because throughout your career, then you have to be in that cadre. You might get some postings, you might come on deputation, but broadly you are in that cadre and you serve in that cadre. So in forest service, I got Jammu and Kashmir cadre. At that time, the situation in Jammu and Kashmir was not very good. So my parents actually, and I had this option. I was already selected in civil services, and I was allotted this IRAS. My parents wanted me that you have an option. You don't go to Jammu and Kashmir, and you be here. You join this central service is also very good. So that then I resigned from Indian Forest Service and I joined Indian Railway Account Service. And it has been a good journey. No, so I think very inspiring story कि आपने कैंपस प्लेसमेंट लेकर के सेल में गए, देन फॉरेस्ट सर्विसेज में, एंड साइमल्टेनियसली सिविल सर्विसेज भी ग्रेट रैंक लेकर के आए, एंड इवेंचुअली टुक अ कॉल बेस्ड ऑन फैमिली के कंसिडरेशंस एंड आल्सो सेल्फ कंसिडरेशंस टू अ बिग एक्सटेंट. सो आई थिंक क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप की सर्विसेज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. आई थिंक आपकी जर्नी के थ्रू एक इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलेगा लोगों को अबाउट वेरियस कंसिडरेशंस ऑफ चूजिंग अ सर्विस ऑल्सो एट द फर्स्ट प्लेस. क्योंकि एक समय ये आपके समय आई थिंक दोनों एग्जाम्स जो होते थे फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज वर डिफरेंट ओनली. They are different. They are still different. Still different, but I think एक ऑप्शनल दो ऑप्शनल तब भी हुआ करते थे सिविल सर्विसेज में, बिकॉज अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज में इट हैज बिकम वन ऑप्शन. Yeah, the format has been changed. फॉर्मेट हैव बीन चेंज. तो आपने सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही लिए थे दोनों की एग्जाम के लिए, if you remember from. Yeah, my optionals were physics and mathematics. Physics and mathematics for both. Though I was from an engineering background, Right. but the optionals were physics and mathematics. That I felt comfortable with. All right, sir. So any tips or advice you have for our budding civil servants जो aspire कर रहे हैं and specifically might be looking at Indian railway services, maybe through the technical route or through the civil services route? Yeah. So I think now the format has been changed a lot. Now it is not specific IRAS or IRTS because
through civil services also, we are taking the officers as IRMS officers, Indian Railway Management Service. So the whole ambit of these services has been brought into one, and it is kind of management of Indian Railways. But still, once you join Indian Railway Management Service, you are allotted different tasks and functions, and in that IRAS still has relevance. So all those people who want to be in IRAS through IRMS, so my advice is that it's a very good service, and the best part of it is that you can pursue a very good work-life balance. It provides that opportunity for you. Within railways, it is a very, very important, prominent service, because almost in all areas you have finance and accounts. It's a very important field in any organization, and as you say that money makes the world go round, right? So without money you cannot do anything, and whenever there is involvement of money, immediately IRS and finance and accounts will come in picture. So you've got a very satisfying role within the organization. Almost in every field, you have that opportunity to influence the decision making and the policy making. So that is the beauty of it. Outside railways, if you see, because it has got a very limited interaction from the outside people. Within the organization, there is a lot of interaction, but outside the organization, with the common public, it's very, very limited. If you are looking for that मेरे को बाहर इंटरेक्शन करना है या उस तरह का, and if you want to be in the limelight, probably you might not find this service very lucrative in that sense. But yes, within the organization, it is very satisfying role, very powerful role. You have lot of opportunities where you can actually help in governance and decision making within the railways, and ultimately internal governance, whatever there is, it reflects in the outside governance also, because internal organizations are good and strong. That will reflect in the overall output of the organization to the public. So that way, I mean, it's a very good and satisfying service. Yeah, I think आपने एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये लेकर के आए कि IRMS हो गया है अब, सो आई थिंक कंसोलिडेट कर दिए गए डिफरेंट रेलवेज सर्विसेज को, एंड उसके बाद जाकर के आई थिंक प्रोबेबली आफ्टर सम टाइम पीपल माइट स्पेशलाइज इनटू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स. सो अगर उसमें अगर हम देखें कि जो पहले चीज़ें चलती आ रही थी कि अलग अलग सर्विसेज सेलेक्ट होते थे, और अब जो कंसोलिडेट हो गया है उसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या बेनिफिट्स लग रहे हैं ऑफ दिस चेंज एसेंशियली? Actually, I feel that still it is in flux. It has not been stabilized. But the idea behind creating a unified service of Indian Railway Management Service was to break the silos of the departments, so that there is a better synergy, better cohesion among the departments. So that was the prime spirit behind introducing this Indian Railway Management Service. And you see, railways is a very big organization. It has got different 10 departments, and all those departments, it was felt that they were working in silos. And in the present situations when we have to deliver so much to the public, and there is so much expectation from the railways, so we could not have this thing going on in a way as it was going. So it was thought that probably we create a service, because once you join a service, you have some affinity and affiliations with that service, and you want to hold on to your turf. So that probably was intended to be broken with introduction of Indian Railway Management Service, so that there is a better cohesion, better policy, and people coordinate with themselves at a greater plane. Got it. इट्स आपने बताया कि 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें वन ऑफ देम इज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसमें अगर देखें अर्स्ट वाइल IRAS ऑफिसर्स आते होंगे, अब तो मैनेजमेंट आई मीन द कॉमन प्रोग्राम से ही ये लोग आएंगे. बट इस डिपार्टमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन से फ्रॉम द IRAS ऑफिसर्स, व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ once they are working in that particular area of railways? See, once you join IRAS, you are responsible for the whole of finance and accounting functions of the Indian Railways, and it's a big organization. So primarily, if you see, you've got two roles. One is the accounting functions, and one is the finance function. The accounting functions, you see, you are responsible for all the payments that railways make to the people, whether it is to the staff or to the outside people. You are responsible to see that all the payments are done timely, correctly, and they are as per the rules and regulations. That is your responsibility. Then you have to see that all the settlement and pension related dues, they are given to the employees of the railways. Then you are also responsible for keeping the accounts of the railways in a fashion that has been prescribed in the code books and the rules book and the laws.
that is also your responsibility. Then, the whole accounting function of any organization that you can conceive, that you are supposed to do. Then, second, aspect is that you have to see the financial, you have to do the financial functions also. In finance, you scrutinize all the investment proposals that are coming, whether it is, through capital expenditure or revenue proposals. You have to see that each and every expenditure that is made by the railway, it is as per the sanction given by the parliament, and it is only for that purpose for which it is intended by the, you see, we use the public money and it is sanctioned by the parliament. So ultimately you are custodian of that money to see that it is actually spent only on for that purpose for which parliament has sanctioned it. So that is your role, and it is a very big role. And also you have to see that money that is being spent on a particular activity, that is not more than what is actually required for that purpose. That also you have to. So these are the basic tenets under which you work, and that is why when you work as an IRS officer, you have a lot of say in all these matters. Like I'll recall that when I was in IIT, I read one autobiography of Lee Iacocca. You must have heard his name. He was, I think, president of Ford Motors. And at that time, I was not knowing whether I will be joining, because I was doing my engineering at that time. So I was not knowing whether I will be joining in an area where I will be doing finance and account function. But in the initial chapters, I recall, it was 30 years back, I recall that somewhere he mentions that the role of finance in an organization is very delicate and very important. And why he says so? Because he says that if finance in any organization, if it is so strong, then the organization cannot grow. Because for growth of any organization, you have to take some risk, calculated risk. You have to make expenditures where probably the returns may not be much, but that is essential for the growth of the organization. And if the finance is too weak in any organization, in that case, that organization will go bankrupt, because you are spending money just like that without actually exercising due caution and everything. And if finance is very weak, the organization is bound to go bankrupt. So you have a very, very delicate and balanced role to play. And that is where the challenge of, of an IRS officer comes. How do you balance that? It's not easy. But that is the case. So we have got very important role within the organization to play in railways. Right. So I think आपने ये बड़ा interesting point बोला कि finance अगर sorted है एक तरीके से, तो I think the organization does well, right? And so अगर if I have to further probe on this, कि क्योंकि Parliament determines the budget for say the railways, right? Then there is certain allocation happening to the railways within the general budget. So उसके दायरे में रह करके are the decisions also taken in terms of कितना क्या revenue sources है, क्या expenditure sources है, and उसके पूरी financial modeling, is that also part of what IRAS cadre is involved in? Yeah, broadly we have to see that. Actually the issue is when you want to do any expenditure, you have to see what is the source of the fund. Correct. That you have to see from where the fund is coming. And if that source of fund is through our internal accruals, probably we can spend it on many activities where we don't require returns. And if that source of fund is from any agency where we have taken it on loan, on which we have to pay interest, then we have to see that this money is actually spent only on those activities where we can actually generate returns more than what is actually we are paying as an interest or to any organization. So that is the thing. So the source of fund is very important. That has to be seen where we can spend this money. If, for example, in your house, you take a loan and you don't spend it on expansion and and you spend it on just going to the hotels and restaurants, and then that is not a good way of managing your finances. So that has to be seen by the finance and accounts in railways. So जैसे जो टिकट के प्राइसेस होते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने की ट्रेन की जनरल टिकट ये है, फर्स्ट एसी टिकट के प्राइसेस ये सब चीज़ों में अकाउंट सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, या इज देयर सम अदर कैडर ऑल टुगेदर हु डिटरमाइंस दीज स्मॉल डिसीजंस? क्योंकि आई थिंक हमारे जो
ऑडियंस हैं जो बहुत लोग रेलवेज में ट्रैवल करते होंगे, एक क्वेश्चन उनको ये है कि अच्छा ये सब जो टिकट प्राइसेस होते हैं ये कौन डिटरमाइन करता है? I don't think to a large extent, finance and accounts is involved in this decision making. It is more of a, I think, political decision. Okay. Right. But we do have, a costing cell where we try to do costing and how much, cost we are. You might remember some time back on the ticket itself when it was being printed, there was a, some line there in which we told the passengers that Indian Railways recovers only 46% or 50% of the total amount that we are actually incurring on this service. So, do you remember that there was a line? Faintly, जो पुराने So, that was at the time of our Honorable Railway Minister, Mr. Piyush Goyal. Because he said that how much we are actually spending. That costing cell does that exercise. But actually, we can determine, so this is the amount actually we are spending. Probably we can calculate, and we have that costing cell as I told you. But how much has to be the price of that service? That is determined not only by the costing, but other factors also. So that is. क्योंकि I think इसे purchasing capability of citizen in general would be accounted for, and therefore it's a political decision. Exactly. So ultimately, Railways has got a twin function. Correct. It is not only a commercial organization, but it is, since it is under Ministry of Railways, it is a government organization. It has got a welfare and social role also to play. Correct. And that has to be balanced. And that is, मुझे लगता है कि आप लोगों का जो function है becomes even more tougher, because it's for a corporate it is very easy to say कि अच्छा इतना हमारा खर्चा हो रहा है, इतना price आप कर दो. But within that ambit, how do you make it sustainable in the long run? Exactly. And that is the challenge. That's the challenge. काफ़ी interesting. So Vineet ji, now जब आप एक बार select हो गए थे, right, and you got into services, so 2 years का training phase रहता है. Now that you mentioned that इतने intricacies रहती हैं, इतना finance की knowledge भी जाननी होती है, accounts की knowledge भी जाननी होती है, तो क्या is there expectation to know these things before joining the services? And if not, then what is done in these 2 years to make someone accustomed to all these nitty-gritties and deliver well after 2 years? So actually it is not required, because when you take this civil services examination, it is open to all graduates. And there is not specific requirement for any service. For example, a person who has done his studies in Sanskrit, he can be an IS officer. And similarly here also, you might have studied history and you can be an accounts officer. So that is not required. But during the training period, because 2 years is a very long period, during that training period, you are trained to do the function that you are recruited for. And that is very, very elaborate. And especially if you see, because I did both, I did my probationary training as a Indian Forest Service officer also. And I did my probationary training as IRAS officer. So I have the experience of both, trainings. If you talk about IRAS training, there's a substantial portion of the training is spent on learning the concepts of accounts and finance. तो उसमें हम लोगों का एक जैसे पूरा 9 महीने का मॉड्यूल था, 9 months total, 8 to 9 months. We spent in an institute called National Institute of Financial Management in Faridabad. Now it is, I think, the name has been changed to Arun Jaitley National Financial Institute of Management. But वहाँ पर हमारा 9 महीने के करीब का पूरा वो था. And in that module we were taught different subjects related to accountancy, finance, all those things we were. जो आप CA वगैरह या ये जो पढ़ते हैं, तो whether you have a engineering background or any background, by this training everybody comes at a level, at par, and you are prepared to do your role as a finance and accounts officer. तो वहाँ वो 9 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, that is very very important. उससे पूरा आपका जो initial foundation है of the subject that you are going to deal in future, that builds. और उसके बाद में फिर then and the one part of the training is that मसूरी part also, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें इनिशियल फाउंडेशन कोर्स इज देयर फॉर ऑल सर्विसेज. सारी सर्विसेज होती हैं उसमें, IAS, IPS एंड अदर एलाइड सर्विसेज, सभी का एक 3-3.5 महीने का कोर्स होता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी एन्जॉयबल. उसमें लर्निंग इज़ मिक्सड विद फन एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. तो उसका तो एन्जॉयमेंट का मतलब कोई ठिकाना ही नहीं. मुझे लगता है कि वो फेज़ जो था, प्रोबेशन वाला फेज़, दैट वाज द बेस्ट फेज़ ऑफ होल करियर.
उसके जितना मज़ा जो है आपको बाद में कभी नहीं आता। आई थिंक उस बहुत फ्रेंड्स वगैरह भी आपके बने होंगे जो अभी भी। हाँ अभी भी हैं एक्चुअली। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज एंड आई थिंक द स्पिरिट बिहाइंड दैट फाउंडेशन कोर्स इन मसूरी इज दैट because you get different services, you work in different areas of government, different ministries, different roles you are playing. But if the same batch, if he knows people personally, and in that 3.5 months of period, you get to know a lot of you make a lot of friends in across the services. And once you go to your respective roles and respective ministries, and you join there as officers, and then you have to work in the government, the kind of synergy that you have with your batchmates is totally different. और उसमें ultimately it helps governance. Government को पैदा होता है कि आप वो if I am not knowing you and I have to deal with you in an official matter, I pick up a call, I'll be very formal, but if I know you, you are my friend, then I pick up a call for any official matter and I talk to you, it will be at a different plane. You understand? So that kind of benefits that you draw from there. Apart from that, there's a lot of other activities, lot of learning. You get to learn about public administration, law, computers, and a lot of subjects which are actually related to general administration. And then there are village visits, there are tracks, a lot of activities. So it was really good. And then you come to railways, or you go to your respective academies, like income tax people, they go to their NADT in Nagpur. Railways people come to Baroda, and there you get the specific input related to railways. We get some financial inputs there in NIFM. We come to our National Academy of Indian Railways there. We do their foundation course, in which we get to know railway working and all those things across different departments working, so that we are equipped to deal with all those issues. And then there is, I think, a higher course also there. So all this part of training, it is learning, it is fun, and you get to know a lot of things. So initially you might be at any, you might have studied any subject in graduation, but ultimately you come at par. And in 2 years you become equipped to hold that role. So initial part foundation course in Labasna Masuri Academy happens. Then आपने बताया कि अलग-अलग railways की भी specific academies हैं. 2 आपने नाम बताए, तो वहाँ पे भी जाते हैं. बट इज देयर ऑल्सो सम इमर्सिव एक्सपीरियंस गिवन, क्योंकि बहुत बड़े से IAS कैडर्स में होता है, दे गो टू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर अ डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट. IPS में भी दे गो टू सम डिस्ट्रिक्ट्स. तो इज दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट हेयर ऑल्सो? इज इट ओनली अकेडमीज में ट्रेनिंग डन एंड देन डायरेक्टली पीपल गेट पोस्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस? यस, डेफिनेटली. ये जो फील्ड ट्रेनिंग है, दिस फील्ड ट्रेनिंग इज एवरीवेयर. इट इज इन IAS, it is in IPS, it was in IFS. You go to your state cadre. It is railways also. In railways also, we go to field training. We are attached to different, offices. We are attached to a division for maybe a month or 2. We are attached to headquarters in particular office, and there we, learn the actual working in the field and hands-on training. In fact, I'll tell you, this was a novel experiment that was done by our course coordinator at that time in the Railway Academy. Whatever this field working was there, it was replicated in the academy. Okay. And he made a lot of actual real documents, real desks flowing on the and this was a room in which we were actually sitting there. We were scrutinizing the things and the way we have to work in the field. So इस तरह के तो hands-on experience is very, and in fact if you ask me, that is the real part of learning, because once you have got all academic inputs, now those academic inputs are to be applied in the actual field. और वो वहाँ पर आप जाके उनको करते हैं, तो रियल लर्निंग फिर वहाँ से आपकी शुरू होती है कि आपके पास में पूरा एक तरह से तीर तलवार सारा कुछ आपके पास में आ गया, और अब आपको वो जाके मैदान में चलाने हैं उस तरह का. तो वो चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ आई थिंक एवरीवेयर इन ये. सो विनीत जी, आपने बताया कि एज प्रोबेशनर ऑफिसर क्या क्या टाइप के चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट ओवर द टाइम थिंग्स माइट चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फाइनेंस की नॉलेज है. सो आर देयर अदर टच पॉइंट्स लेटर पार्ट ऑफ द सर्विसेज में भी, समथिंग लाइक अ मिड कैरियर ट्रेनिंग, जहाँ पे और चीज़ें सिखाई जाती हैं टू कीप अ पर्सन अपडेटेड थ्रू आउट देयर सर्विस टेन्योर? Yes, definitely. Actually, we've got 2 mid-career programs. One is the management development program. That is, I think, after 6 or 7 years of service. In railways, you are, or in any, I think, service, you join at a junior scale. You get promoted to senior scale, and then you get a junior administrative grade.
in railways, this JG is the cutting edge of, working, where you start getting independent charges, independent responsibilities. So just after you are about to go to junior scale, there's a training that is called MDP, Manager Development Program, and there you are actually taught this concept of management and how you have to take those independent roles. That part of training is there. Later on, I think after 15 or 16 years, you get to attend one more training program, and that is Advanced Management Program. Now your role slightly changes during that, because once you complete your 15, 16 years of service, you are more into policy making roles, leadership roles, all those roles you have to take, and for that you have to be prepared. And with that focus, we have this advanced management program where you're giving these inputs where you can take further higher roles. So these two training programs normally we have for every officer that joins railways. One is I told you, management development program, and other one is at a later stage, it is advanced management program. सर आप लोग भी गए होंगे, आपका बैच गया होगा आई एम श्योर, तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक फॉर यू मीटिंग एवरीवन अगेन इन द एकेडमी एंड देन साथ में क्लासरूम में या फिर अदरवाइज सबसे मुलाकात हो रही है? ये अच्छा लगता है, बढ़िया एक्सपीरियंस है. और इनफैक्ट MDP में तो नहीं था आई थिंक, बट AMP में वी हैव अ कंपोनेंट ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग. ओके. तो उसमें वहाँ पर 2 जगह पे, सिंगापुर में एक है इंस्टीट्यूट और मलेशिया में इंस्टीट्यूट है, उनमें ले जाते हैं. और पीपल लाइक इट, आई मीन, क्योंकि इट्स अ लर्निंग मिक्स्ड विद फॉरेन ट्रिप एंड गुड इनपुट्स, बिकॉज एक INSEAD करके वो है, दैट इज़ फ्रेंच इंस्टीट्यूट, एंड दैट हैज़ अ कैंपस देयर ऑल्सो इन सिंगापुर. सो उसमें ट्रेनिंग होती है. मलेशिया में भी एक इंस्टीट्यूट है, ICLIF और समथिंग, उसमें मतलब वी आर ट्रेंड, और सम पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज़ इन बड़ौदा, दैट इज़ एकेडमी, रेलवे एकेडमी. सो वहाँ पे तो सारे लोग मिलते हैं, और उसके बाद में फिर इस तरह का दोबारा से फिर देन वी अगेन गेट इनटू दैट एकेडमिक मोड, जहाँ में फिर कुछ पेपर्स लिखने हैं, कुछ करना है, वो करना है, तो फिर चेंज होके अच्छा लगता है. और सारे लोग फिर से ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप से फिर वो ग्रुप वर्किंग शुरू हो जाती है. इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक जर्नी रहती है, बोथ एट द प्रोबेशनरी लेवल एज वेल एज आगे जाके मिड करियर ट्रेनिंग में, राइट. एंड आई एम श्योर उससे काफ़ी ऑन सर्विस जा करके बेटर डिलीवरी के लिए आई थिंक इक्विप होके लोग जाते हैं. आई लाइक टू नाउ टेक आई नाउ लाइक टू डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट रेलवेज. थोड़ा हम लोग ने आई थिंक स्पोरेडिकली डिस्कस किया है, बट थोड़ा सा अगर हम लोग टॉप लेवल से रेलवेज का डिस्कस करें, एंड देन विल गेट इनटू आपका जो टेन्योर रहा है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क रहा है उसके अंदर. सो रेलवेज में आपने आई थिंक मेंशन किया कि बहुत सारे टाइप के डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है, तो कैन यू थोड़ा बता सके हमारे व्यूअर्स के लिए कि व्हाट आर द वेरियस डिविजन्स, हाउ इज रेलवे स्ट्रक्चर्ड इन जुरिसडिक्शनल वाइज? So if you see, Indian Railways works under Ministry of Railway, and it has got a 3-tier structure. At the apex level, there is a railway board, and that is the supreme policy making body. Its board, it has got chairman railway board and I think 4 members. That is member infrastructure, member operations and business development, member rolling stock, and member finance. And then we have got different director generals also. They are also in the board. The DG human resources, DG health services, like that. So it's a whole board, and that is the apex level, and it's a principal policy making body. Below that railway board, we have got different zones, and that are spread across the territory of India, and there are about 18 or 19 railway zones, and a zone is headed by a general manager. And then we have got different verticals within the zone. There's a finance vertical, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, safety, material procurement, that is stores department. All these verticals are there, and these are headed by a general manager, which is an administrative post. And below that, the third level, there are divisions. So each zone will typically have 3 or 4 divisions, and each division is headed by a divisional railway manager. And again, under that, there are different, roles. Like for finance, there is a senior divisional finance manager. For commercial, there is a senior divisional commercial manager. Also like that. So it is basically 3-tier structures, and this is how it functions. So at the field level, divisions, and then zonal headquarters, and then railway board.
एंड आपने बताया कि मल्टीपल उसके अंदर जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अलग अलग सर्विसेज के लोग अलग सर्विसेज के लोग हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन रेलवेज you got 10 class 1 service. It's a big organization. I mean, I don't, I cannot see any government organization will have 10 class 1 services within itself. So out of those, अब तो शायद चेंज हो गया है. कौन सी है वैसे, अगर आपके टाइम से जो थी, अगर हमारे टाइम पे अगर थी तो हमारे टाइम पे टोटल 10 सर्विसेज जो हैं क्लास 1 हैं, उसमें 4 सर्विसेज जो हैं they come from civil services examination, that is the Indian Railway Traffic Service, that looks after the traffic and commercial and operations aspect of the railways. This second service is IRAS, that looks after the finance and account function of Indian Railways. Then the other one is IRPS, Indian Railway Personnel Service, and that manages the whole HR functions of Indian Railways. Right. And then there is RPF, Railway Protection Force, and that is responsible for protection of the railway property. So these 4 services will be drawn from civil services examination. Other 5 services which are engineering services, and they come from the Indian Engineering Service Examination, IES जिसको बोलते हैं, उससे आएंगे. उसमें पहला सर्विस जो है इंडियन सर्विस ऑफ रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, दैट इज एसेंशियली सिविल सर्विसेज, सिविल इंजीनियरिंग. Then you have got Indian Railway Service of Mechanical Engineers, that is Mechanical Department. Indian Railway Service of Electrical Engineers, that is Electrical Department. Indian Railway Service of Signals and Telecommunication. And then you have one service that this has got a support function, Indian Railway Store Service. Okay. So ये 5 सर्विसेज जो हैं ये आएंगी इंजीनियरिंग IES के एग्ज़ाम से, 4 सर्विसेज आएंगी सिविल सर्विसेज से, तो टोटल 9 सर्विसेज. देयर इज़ वन मोर सर्विस दैट इज़ इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस. उसका एक अलग से एग्ज़ाम, वो भी यूपीएससी के थ्रू आते हैं, बट दिस दिस इज़ अ सपोर्ट फंक्शन दैट गिव्स यू मेडिकल सर्विसेज इन द रेलवेज. सो अपना रेलवे का, इनफैक्ट रेलवे इफ़ यू सी, हर डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर में अपना खुद का है, खुद का मेंटेनेंस भी खुद की है, एसेट्स भी मेंटेन करते हैं, मेडिकल भी खुद का है, और कई तो स्कूल्स वगैरह भी जो है चलते हैं रेलवे के. तो अपने आप में इफ़ यू सी, इट इज़ अ मिनी इंडियन गवर्नमेंट इन इटसेल्फ. करेक्ट. पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में खुद ही इंडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि सारा अपना सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है. सो वर्कफोर्स तो काफ़ी बड़ा होगा रेलवेज का, मतलब अगर पूरा होलिस्टिकली देखें तो. हाँ, ये आई थिंक इट्स मेजर एम्प्लॉयर. वी हैव गॉट अबाउट 12 lakhs एम्प्लॉइज़, और डिफेंस और रेलवेज ही सबसे बड़े वो हैं जो कि एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट में. तो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर्टेनली. सो नाउ कमिंग टू इंडियन रेलवेज के अंदर अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड कुछ सवाल ये हैं कि हाउ इज़ इंडियन रेलवेज इन जनरल लुकिंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन विद द करंट टेक्नोलॉजी कमिंग इन. सो उसमें किस टाइप के फाइनेंसिंग मॉडल्स या आपके पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके डिसीजन लिए जाते हैं कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी को लिया जाए नया? तो इसमें मैंने बताया जैसे कि आपके पास में जब आप पैसा खर्च करें, फ्रॉम आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द फाइनेंस एंगल, नॉट फ्रॉम टेक्निकल एंगल. हाँ जी जी बिल्कुल. जब आप उसमें देखते हैं कि कौन सा किस में इन्वेस्ट करना है आपको और उसके रिटर्न्स क्या होंगे, तो हमारे पास में एक वो होता है कि जब भी कोई प्रपोजल आएगा विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एंड इफ़ इट इज़ बीइंग सोर्स्ड बाय द कैपिटल, और कैपिटल जो है जो कि या तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से हमारे पास में आया विच हैज़ बीन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो जनरल बजट जो होता है, पहले तो अलग था बजट, अब तो सिंगली हो गया, तो उसमें वहाँ से आ रहा है, या फिर वी आर जनरेटिंग दिस कैपिटल बाय through the market. Now Indian Railways does not have the power to borrow from the market, but there is a via media. तो एक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसके थ्रू हम लोग मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, कर लेते हैं. वी डायरेक्टली वी कैन नॉट, बिकॉज वी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज डज नॉट हैव सोवरेन पावर्स टू बोरो फ्रॉम मार्केट. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास में पावर्स हैं, हमारे पास में नहीं है, बट उसके थ्रू तो वहाँ से फंडिंग हो जाती है. जब इस तरह के फंड्स हमारे पास में आते हैं तो ये फंड हमें ये इंश्योर करना है कि ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे जाएँ जहाँ की एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाए, एंड दैट इज़ आई थिंक 12% के करीब में, पहले 14% थी, अब शायद इतना है. तो उतना जब हमारे पास में प्रपोजल आएगा देन वी हैव टू सी कि ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में वी विल गेट दिस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इफ इट इज़ बिलो दैट इट विल नॉट गो थ्रू, इट इज़ अबव दैट वी कैन प्रॉब्ली प्रोसीड. But the issue with that, again, I'm telling you, issue with that is
Because when you are actually calculating IRR, internal rate of return of any investment, राइट you make certain assumptions. आपको assumptions करने पड़ेंगे. For example, अगर कहीं करना है कि मैं यहाँ ट्रैक बना देता हूँ और ट्रैक में फिर उसके बाद में इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा और इन्वेस्ट करने के बाद में इतना रिटर्न आ जाएगा, ओवरऑल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरा इस फंड पे जो मैं जितना इन्वेस्ट करूँगा उस पर मेरे को 12% का मिल जाएगा. बट उसमें आप वो करेंगे कि कितना ट्रैफिक मेरे को आएगा इस पर, वो एजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि यू डू नॉट नो. So you have to it has to be based on certain assumption, and those assumptions might actually go not as per your thought. या So it might change the final IRR. So that is where you have to see the basis on which this IRR has been calculated, what are the foundations and how solid are those assumptions. वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तो उसमें काफ़ी होता है. और इसके लिए हमारे पास में एक हम लोग वो भी करते हैं, प्रोडक्टिविटी टेस्ट भी करते हैं, जिसमें कि कोई प्रोजेक्ट हमने कर दिया और करने के बाद में हमने उसमें किया था कि हमने ये एजम्पशंस होंगे, ये होगा, इसके बेसिस पे हमारा इतना रिटर्न आ जाना चाहिए और दिस इज़ हाउ द प्रोजेक्ट विल गो. 3-4 साल बाद में, 2 साल बाद में कभी फिर देन वी रिव्यू दैट प्रोजेक्ट कि हमने जो सोचा था, जो किया था, वो एक्चुअल में हुआ कि नहीं, या उतने रिटर्न्स आ रहे हैं. सो दैट प्रोडक्टिविटी टेस्ट ऑल्सो वी डू कि हम एक्चुअली क्या हुआ, उसके बेसिस पे देन वी कैन मेक वी कैन लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स एंड प्रॉब्ली इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स और नेक्स्ट असेसमेंट जो हम करते हैं फाइनेंशियल वो करते हैं, तो उसमें प्रॉब्ली वी कैन यूज़ दैट इन वो. सो इस तरह से चलता है. पर अल्टीमेटली वही चीज़ है कि आपको अगर फाइनेंशियली सस्टेन करना है तो योर इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी वाइज. यू हैव टू सी कि एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. तो मोटा मोटा ये लग रहा है कि कोई भी जैसे कोई भी नया टेक्नोलॉजी लाई जा रही है या कोई भी नया प्रोजेक्ट रेलवे में स्टार्ट हो रहा है कि इस टाइप की चीज़ें करनी है, उसके लिए दिस काइंड ऑफ एन एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज इज डन टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, एंड देन बेस्ड ऑन दीज परसेंटेजेस जो आपने बताया कि 12% है कि 13% है, देन डिसीजन इज टेकन कि इज इट सस्टेनेबल टू हैव दैट प्रोजेक्ट और नॉट. बिकॉज बहुत बार ये होता है कि टेक्नोलॉजिकली तो बहुत कुछ करा जा सकता है कि ये लगा दें वो लगा दें, बट देन लुकिंग एट ऑल दी सिनेरियोज ये आई थिंक डिसीजन लिए जाएंगे. तो इसी में सो अगर इसमें एग्जांपल लीजिए वंदे भारत ट्रेन जो अभी रिसेंटली आई, तो उसमें भी इसी टाइप का पूरा एक्सरसाइज की गई होगी एंड अंडरस्टैंडिंग बनाई गई होगी कि कैसे ये वायबल है कि नहीं. सो उसके अंदर आपके कोई इंसाइट्स हैं क्या इसके ऊपर? I have not directly dealt with this Vande Bharat, but I'm sure that because nothing can go, without finance. So the people who are actually involved, the proposal must have come. They must have seen the proposal, and then it is not only the IRR, but in certain areas, we make investments or we make expenditure on which we don't consider returns. And इस केस में तो किया होगा, देखा होगा कि कितना वाइबल है प्रोजेक्ट. बट जो हमारे जैसे आई विल टेल यू कि इंटरनल एक्रूअल से जो हम करते हैं, एंड वी हैव गॉट दिस कैपिटल फंड, वी हैव गॉट डेवलपमेंट फंड, DF होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होते हैं. दोज फंड्स आर एक्चुअली फेड बाय आवर इंटरनल अर्निंग्स. जैसे हम लोगों ने इतना रेवेन्यू किया, रेवेन्यू के बाद में इतना एक्सपेंडिचर हो गया, तो दैट मार्जिन जो होता है उस मार्जिन से ये फंड होते हैं. जब ऐसे प्रोजेक्ट से ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं हम विच आर एक्चुअली चार्ज टू DF एंड DRF, वी डोंट सी रेट ऑफ रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द वर्क्स, पैसेंजर एमिनिटीज़ का वर्क है, कोई हमें वहाँ पर करना, कोई पैसेंजर सेफ्टी के लिए उसके लिए वहाँ कोई ब्रिज बनाना है हमें, so that is a work, but we will not see how much, because it is ultimately for the, so there are many works in which we will not see, but those works have to be fed by our not by loans that we are taking, क्योंकि उसमें तो हमें पैसा देना पड़ रहा है ना. तो पैसा देना पड़ रहा है तो हमें तो देखेंगे कि अगर हमें 100 रुपये हमने किसी से लिया और उस पर 106 रुपये 1 साल बाद देना पड़ रहा है, तो उस 106 का 108 मेरे पास बने तभी तो मेरे को है, अदरवाइज 106 मेरे को उसको देना और यहाँ पे 102 ही बन रहा है, तो 4 रुपये का तो लॉस होता रहेगा. तो वो वहाँ से. और इनफैक्ट अगर देखें तो वन ऑफ द फाइनेंशियल चेंजेस जो रेलवे के सामने आ रहे हैं वो भी ये आ रहा है कि हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो काफ़ी मतलब इट इज़ नॉट इन अ वेरी हेल्दी स्टेट प्रेजेंटली. और वो दे आर रीजन्स कि बीच में कोविड हो गया, फिर उसमें उस तरह की सिचुएशंस आ गई, या हमें अभी एक्सपेंशन के लिए कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसके कि रिटर्न्स अभी इमीडिएटली हमें ना मिल पाए हैं. सो यू वुड नो ऑपरेटिंग रेशियो, और इट इज़ एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में जो हम बोलते हैं ना कि नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स जो बोलते हैं, तो उसी टाइप का है. तो अपने प्रॉफिट मार्जिन हैं ये कि फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेटिंग रेशियो इज़ 98%, तो 98% का मतलब ये है कि फॉर अर्निंग ईच 100 रुपीज़ यू हैव टू स्पेंड 98 रुपीज़. यानी कि 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, 92 रुपीज़ आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं, उसको 100 को अर्न करने में 2 रुपीज़ इज़ योर मार्जिन.
और वो 2 रुपये का जो मार्जिन है उससे आप अपने इस तरह के कामों को फंड करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आप रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, जिसमें आपको जो पब्लिक के लिए करने हैं, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए करने हैं वो वाले काम, तो उस तरह के काम आप जो कि DF में DRF में जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अभी चूँकि ऑपरेटिंग रेशो का मतलब हमारे मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर, सो वी आर नॉट एबल टू फीड दीज फंड्स। तो यहाँ इश्यूज़ जो है हो रहे हैं। कैपिटल से हमें बहुत पैसा मिल रहा है, लाइक फंड दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द जनरल बजट। पहले तो अपना बजट था, अब तो जनरल बजट से हमें पैसा मिलता है। और एवरी ईयर our honorable minister, is very aggressive in this sense. He is getting a lot of money from the general budget. लास्ट ईयर अभी मेरे ख्याल से 2,40,000 करोड़ रुपए के करीब में थे, अभी भी शायद 2,60,000 करोड़ के करीब में हम लोग आए। तो कैपिटल में हमारे पास बहुत बजटरी सपोर्ट से बहुत पैसा आ रहा है। एंड बिसाइड दिस फंड्स वी आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज ऑल्सो आउटसाइड द बजट, जिससे हमें पैसा हम लोग ले लेते हैं। बट ऑल दोज मनी is we have to see that is spent on the expansion and the capacity creation of railways. वो हम इस तरह से इनमें खर्चा ना हो जाए, अदरवाइज वो फिर सिचुएशन वैसी ही रहेगी। and that is where again the role of finance is important, कि वो देखना है कि हमारा जो पैसा है वो इस तरह से हो कि हमें बाद में वो आती रहे। सोनी जी, आपने बताया कि जनरल बजट से हमको काफ़ी अच्छा एलोकेशन आ रहा है, एंड आई थिंक आपने मेंशन किया कि पहले अलग होता था बजट, अभी 2017 से इट हैज़ बीन क्लब्ड विद द जनरल बजट इटसेल्फ। तो क्या रैशनल था टू मेक दिस चेंज इन 2017 एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड द रेलवेज एंड इन जनरल द IRAS cadre? See, believe in 1923 or 24, there was an Ackworth committee actually. Right. That Ackworth committee recommended that the general budget should be separated from the railway budget. And from 1924 onwards, we started having a separate budget. Probably the rationale at that time was that railway revenues formed a major chunk of government revenues. Railway was a big, economic activity. बाकी economic activity इतनी ज़्यादा शायद नहीं थी, तो इसलिए इसका पोर्शन काफ़ी उसमें ज़्यादा था। और डिफरेंट रेलवेज जो है आ रही थी, उसमें हम लोगों को मतलब एक तरह से रेलवे को सेल्फ सफिशिएंट करके अपना ही, जैसे मैंने बताया आपको कि इंटरनल अक्रूवल से फिर हम DF बनाएंगे, DRF बनाएंगे और फिर अपना वो एक्सपेंशन करेंगे। तो वो उस रीजन से हमारे पास में एक ये बजट को सेपरेट किया, एंड दैट प्रैक्टिस कंटिन्यूड टू ऑलमोस्ट मोर देन 90 ईयर्स। 1923 से लेके 24 से लेके और अब तक 1970 तक। Now, in these 90 years, the situation, economic situation of the country and otherwise, it has changed a lot. तो वो 2017 में फिर इससे पहले एक कमेटी थी, शायद नीति आयोग की कमेटी, जिसमें रिकमेंड किया कि वी शुड मर्ज द रेलवे बजट विद दिस जनरल बजट। तो रैशनल दैट वाज गिवन कि अब वो चीज़ वो जो थी वो रेलवेज़ के रेवेन्यू, बिकॉज इकोनॉमी हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड्स नाउ। अब वो उतना नहीं है कि जितना रेलवेज़ का जो रेवेन्यू है वो उसमें अब बहुत ज़्यादा ऐसा चंक नहीं है। लेट्स से रेलवेज़ के जो रेवेन्यू है वो करीब इतना 2.5 लाख करोड़ के करीब में होंगे जो रेवेन्यू हमें आता है। एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ इफ़ यू कंसिडर इनकम टैक्स से 10 लाख करोड़ के करीब में आप लगा लीजिए, 10 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स, 17-18 लाख करोड़ का मेरे ख्याल से GST वगैरह जो इंडायरेक्ट टैक्सेज हैं, तो 37-38 और इधर से मतलब 40-42 लाख करोड़ के करीब में होगा। 40-42 लाख करोड़ का टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू अभी जो बजट में आता है। और ये जो रेलवे का रेवेन्यू है 2.5 लाख, तो इट्स नॉट दैट मच नाउ। सो एक तो ये है कि उसका, और दूसरा फिर ये था कि द वे ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ ग्रोइंग। सो पहले तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे हैज़ अ मेजर पोर्शन। अब हमारा ये है कि हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर एज ए होल वी हैव टू सी, तो उसमें रेलवेज़ भी आएगा, वाटरवेज भी आएगा, हाईवेज भी आएगा, एयरवेज भी आएगा। सारे इनको सेक्टर्स को एक तरह से हमें इंटीग्रेटेड तरीके से पूरे सेक्टर को वो करना है, बढ़ाना है। सो प्रॉब्ली अगर आप मर्ज कर दें इसको, सो देयर विल बी अ बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप उसको रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट कर सकते हैं और सिनर्जी ज़्यादा हो सकती है उसमें। दैट मस्ट हैव बीन द थिंकिंग। तो इसमें इसको वो करें। आप ये देखिए कि जैसे आपके पास में कुछ पैसा है, मेरे पास में कुछ पैसा है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें अब अगर एक वो दोनों को देखना है कि हम दोनों को एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस और उसमें वो करना है, हम दोनों फंड्स को मिला लें और फिर मिलाने के बाद में तो वी हैव मोर रूम एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी कि हम कुछ फंड जो है तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं है, तुम ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहे थे, आप इधर भी थोड़ा सा कर दें, या कुछ फंड, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्ली एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है।
So probably that might have been the thinking कि अब इसको merge कर दिया जाए, उसके बाद में फिर और पूरे integrated तरीके से more synergy के साथ में you go on this. So IRAS cadre must also be involved in the budget creation process. So उसमें कौन लोग होते हैं जो involved होते हैं? Now पहले से अभी में कुछ change आया in terms of that process itself of creating the budget and giving it to the parliament and so on and so forth. नहीं, I don't think कि कोई major इसमें मतलब I have not felt कि ऐसा है, but the thing is कि बजट तो भी पहले रेलवे का जब सेपरेट बजट था तो रेलवे की सेपरेट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो होती थी विच वर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, और वो वहाँ से सेपरेट होती. नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल बजट, तो उसमें डिमांड नंबर 80 में एक ही उसमें डिमांड में रहता है, बट वो फिर उनके डिमांड्स के नंबर एक तो चेंज हो गए, तो उस तरह से आपके उसमें हो गया. बट द एसेंशियल एक्सरसाइज ऑफ बजट दैट हैज़ लार्जली रिमेन द सेम, वो उतना नहीं. द अदर थिंग इज़ कि पहले जब रेलवे का सेपरेट बजट था और ये जनरल बजट था, तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो मैंने बताया वो रेलवे को देती थी, और वो जो जितना सपोर्ट मिलता था दिस वाज बीइंग कॉल्ड कैपिटल एट चार्ज. वो कैपिटल एट चार्ज होता था, और उस कैपिटल एट चार्ज पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे को लोन दे दिया, सेपरेट बजट है लोन दिया, उस पर आपको कुछ डिविडेंड देना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. दैट वाज 5% 6% जितना भी डिविडेंड है वो डिविडेंड हर साल पे करती थी, तो वो कैपिटल एट चार्ज. नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम कि जहाँ पे हमने मर्ज कर दिया दोनों बजट को, नाउ दैट कैपिटल चार्ज हैज़ बीन शेल्व्ड, और अब वो डिविडेंड इंडियन रेलवेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देना पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली एसेंशियली अब तो एक ही हो गए, तो उसमें कोई इस तरह का डिस्टिंक्शन नहीं है. सो दिस हैज़ बीन द चेंज. तो बाकी ब्रॉडली इन द प्रोसेस कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर इस तरह का, मतलब आई हैव नॉट फेल्ट. जी सर. So Vineet ji, now coming to your time in service, 25 plus years of working as a Indian Railway Account Services Officer. आपकी पहली जो पोस्टिंग जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिला था was in प्रयागराज in traffic accounts. So पहला तो ये पूछना चाहूँगा कि what is traffic accounts, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टर्म है. आई थिंक हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि होता क्या है ये, एंड देन वी कैन गेट इनटू कि वहाँ पे आपने क्या क्या काम किया था. So as I've told you, this railway का जो ऑर्गेनाइजेशन है it's not like other typical ministries. Other ministries में क्या होता है कि आपको बजट से पैसा मिलता है, and mostly it is the expenditure. वो expenditure करते हैं different schemes of the government, different plans जो होते हैं उसमें करते हैं. But railways is a commercial organization. तो जहाँ हमारे expenditure भी है और जहाँ हमारा revenue भी है, हम transport services देते हैं, जहाँ पे कि passenger services है, freight services है, और उनका चार्ज करते हैं, उससे revenue भी आता है. और ये रेवेन्यू जो है, जो अर्निंग्स हैं रेलवे की, दीज अर्निंग्स आर एक्चुअली कंपाइल्ड एट द लेवल ऑफ जोनल रेलवे. जो मैंने 3 tier स्ट्रक्चर आपको बताया था, तो ये सारी बाकी के डिवीजन्स वगैरह में एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब करते हैं, बट अर्निंग्स का टोटल कंपाइलेशन जो होता है फॉर अ पर्टिकुलर जोनल रेलवे, दैट इज़ इन द हेडक्वार्टर्स. और उस हेडक्वार्टर्स का जो ट्रैफिक अकाउंट्स का ऑफिस होता है, ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग ऑल दीज अर्निंग्स और इंश्योरिंग कि ये अर्निंग्स प्रॉपरली गवर्नमेंट के किटी में पहुँच जाएँ और leakages of earnings ना हो, and preparing different statistical statements of earnings and then submitting them to railway board. वो सारा जो पूरा काम है अर्निंग्स से रिलेटेड, अर्निंग्स मैनेजमेंट का और उनका अकाउंटल रखना, सारा करना, that is done in the traffic accounts office. And that was my first posting. I told you कि in J grade you start getting your independent charges and postings. That was I think in 2006 or 7, तो जब 6-7 में था. तो उस समय पे जब मैं वहाँ पर गया तो इट वॉज नॉट कंप्यूटराइज, सारा मैनुअल होता था. तो बेसिकली हमारी जो अर्निंग्स आती हैं वो अर्निंग्स सारी मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग्स आर बेसिकली फ्रॉम द स्टेशंस. क्योंकि आप जैसे जाते हैं स्टेशन पे, पहले टिकट खरीदते थे, वहाँ पैसा दिया, वो सारा वो हो गया, तो एक मंथ की बैलेंस शीट वो जो एक स्टेशन बना देगा, उसको पैसे को जमा कर देगा, और उसके बाद में वो बैलेंस शीट वहाँ ट्रैफिक अकाउंट्स में आ जाएगी. वहाँ हम लोग पूरा जितने भी आए पूरे जोनल रेलवे का वो अर्निंग सारी कंपाइल करेंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाएंगे. देयर डिफरेंट सेक्शंस, गुड सेक्शन हो गया, पैसेंजर वाला सेक्शन हो गया, पार्सल वाला सेक्शन है, वो सारे अपनी अपनी उनको कंपाइल करते थे. इट वाज ऑल मैनुअल, बहुत उसमें कंप्यूटराइजेशन नहीं था. बट एट दैट टाइम अ सिस्टम वाज एक्चुअली कमिंग अप. दिस वाज 2008 राइट? 2006-7 की बात है. उस समय पे ये एक सिस्टम आ रहा था जो कि एफ्रेस करके सिस्टम था, एडवांस्ड फाइनेंशियल रेलवे अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर सिस्टम. उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे थे. तो व्हेन आई went there and I joined as Deputy Financial Advisor in Traffic Accounts in Prayagraj. So I thought that we have to implement this system here. Right.
so as to computer, and that was my first brush with computerization. तो वहाँ जाने के बाद में वो सिस्टम हम लोग एक बेंगलोर की फर्म थी, हाँ. वो उस पे सिस्टम पे काम कर रही थी, उसको एंगेज किया हमने और उस सिस्टम को फिर धीरे धीरे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, एंड आई थिंक 2008 वी गॉट इट इनॉग्रेटेड. तो वो पूरा सिस्टम किया, तो उसमें दो इट वॉज ए लोकलाइज सिस्टम, मतलब पूरा उस पर नहीं था, बट इट एक्चुअली हेल्प्ड इन ईजिंग द वर्किंग ऑफ द ऑफिस. काफ़ी हद तक वो जो है उसमें वो हमें वो हुआ, और जितने भी स्टेटमेंट्स थे और जो भी जाते थे या जो भी कंपाइलेशन था वो बड़ा आसान हो गया फिर से. दैट वाज इम्प्लीमेंटेड देयर. तो विनीत जी, जब कंप्यूटराइजेशन किया इसका, सो मैनुअल से ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड टेक का यूटिलाइजेशन किया, तो क्या चैलेंजेस आए इन अडॉप्शन लार्जली, एंड लोगों को समझने में टाइम लग रहा होगा कि ये कैसे चेंज को अडॉप्ट करें, तो थोड़ा इसके एरिया में बता सकें हमको आप. See, whenever you implement such kind of systems, there are challenges. क्या? क्योंकि मैंने तो पहली बार ही महसूस किया कि इसमें एक तो ये है कि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह के सिस्टम्स को, तो डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज़ पे थोड़ा सा आपको इश्यूज आते हैं, और फिर देन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे. इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी डिज़ाइन एंड डेवलप था, बट हमें इम्प्लीमेंट करवाना था वहाँ पर, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो इश्यूज आ रहे थे, सबसे बड़ा तो मुझे लगा कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है सिस्टम की. कभी भी नया सिस्टम आता है ना, इट इज़ आवर ह्यूमन नेचर दैट वी हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज. हर एक के साथ में है, मतलब तो उसमें यह है कि ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है, उसमें लोग बोलेंगे नहीं सब चल तो रहा है, ये नए सिस्टम में क्या है. और दूसरा, अनलेस यू बिकम कन्वर्सेंट विद द सिस्टम, वो जब तक वो चीज़ किसी को जानते नहीं है तब तक वो हवा लगती रहती है भूत एकदम, और जब जान जाते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है ये ना. तो इट इज़ अल्टीमेटली नोइंग, तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसमें होना लोगों में, वो एक चैलेंज था. तो इसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई थी. एक मेरा ऑफिसर था, मतलब जूनियर लेवल पर, ही वॉज वेरी एफिशिएंट एक्चुअली. उसने काफ़ी इसमें हेल्प की सिस्टम को डेवलप वो इम्प्लीमेंट करने में, और वो उसने किया. उसके बाद में जितने भी सेक्शंस थे, उन सेक्शंस में वो जाके और उनको एक्सप्लेन करते थे, बताते थे कि ये आप इस तरह से करो, इसको ये करो, इसमें ये चीज़ हो जाएगी, ये देखिए. तो कुछ फीचर्स जैसे उनको वो लगते थे कि अच्छा हाँ इसमें ये तो हमें बड़ा मुश्किल पड़ती है, इसमें तो बड़ा आसानी से हो रहा है. तो ये तो धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, एक तो इम्प्लीमेंट. दूसरा जो मैंने देखा कि जब भी इस तरह के सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक बड़ा मेजर चैलेंज जो आता है इम्प्लीमेंटेशन में, वो आता है कि आप सिस्टम को जीरो से तो शुरू कर नहीं रहे, आप कहीं से शुरू कर रहे हैं. इसका मतलब उस सिस्टम जो मैनुअल सिस्टम पहले चल रहा है, उसका ऑलरेडी एक लेगेसी डेटा है जो कि आपके सिस्टम में आना है, उसके बाद सिस्टम शुरू होगा. क्योंकि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि वर्क तो पहले से चल ही रहा है, आपका काम तो हो रहा है, वो मैनुअल में उसको वहाँ. तो वो जब डेटा को हम लोगों ने उसमें इंट्रोड्यूस करना शुरू किया और लाना शुरू किया, जो पहले वाला डेटा था ताकि सिस्टम में, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें जो आती थी. क्योंकि डेटा एक बार आप उसमें लाएंगे तो वो कितना इंटीग्रिटी डेटा की कैसी है, कितने इश्यूज हैं. डेटा अगर करप्ट हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ डेटा के, क्योंकि सिस्टम तो कंप्यूटर सिस्टम इस तरह के होते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट. आपका गड़बड़ से डेटा पहुंच गया तो वो रिजल्ट भी गड़बड़ ही देगा, वो सिस्टम ठीक भी है फिर भी. तो उस जगह पे हमें चेक करना और वो सारी चीज़ों को देखना, वो इनिशियल एक बार डेटा चला गया सिस्टम के अंदर में, दैट इज़ एन ईजी थिंग, वो तो फिर आपका सिस्टम काम करेगा. लेकिन शुरू में जो लेगेसी डेटा है उसको करना, और ये इशू मुझे आया क्रिस में भी काफ़ी, उसको किस तरह से हम करें. तो वो चैलेंज जो इम्प्लीमेंटेशन में लगता है, वो एक मुझे लगा. और बाकी तो फिर स्टाफ चूँकि मेरे अंडर में ही था, तो एक जो होता है ना कि जब आप किसी स्टाफ को कंट्रोल करते हैं तो फिर फोर्स से भी आप उसको कि नहीं भाई ये करना है करना. तो ठीक बात सर. सो एंड व्हाट वर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ जो ये पहली बार प्रयागराज में आपने किया था, कि क्या ऐसे टैंजिबल चेंजेस दिखे, मे बी टाइम बच रहा था लोगों का या एफिशिएंटली ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, उस पर थोड़ा लाइट शेड कर सकें. देखो, एक तो सिस्टम जब इम्प्लीमेंट किया तो सर्टेनली आपकी वर्किंग इम्प्रूव हो गई, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो गई. आपके जितने भी स्टेटमेंट्स जो हमें भेजने थे, अर्निंग के स्टेटमेंट बोर्ड जाते थे, वो सारे अब सिस्टम से निकलने लगे. तो सिस्टम से निकलेंगे तो, एंड ऑफ कोर्स अगर मैनुअल कर रहे हैं और सिस्टम अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया है, तो देन देयर इज़ अ चांसेस कि एरर्स भी कम होंगी, एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा होगी, वो सारे बेनिफिट्स. तो वो सिस्टम एक्चुअली, कोई भी अगर आप सिस्टम को देखें, इफ़ यू सी, इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू अप्रोच द इश्यूज एंड द वर्किंग इन ए सिस्टमिक मैनर. आप सिस्टम्स को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि सिस्टम्स जो हैं दे आर परमानेंट. आप और अच्छे सिस्टम विल बिल्ड गुड इंस्टीट्यूशंस, और वो आपका पर्पस, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें सिस्टम्स ठीक करने हैं
और अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने ताकि वो परमानेंट रहें, हमेशा चलते रहें. स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर देयर, इफ आई एम अ गुड ऑफिसर, यू आर अ गुड ऑफिसर, आप वहाँ गए, आप अच्छे अपने बिकॉज ऑफ द शेयर फोर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी और वो करवा लेंगे काफ़ी काम, बट वंस यू लीव इट रिमेन्स लाइक दैट ओनली. तो हमेशा आई बिलीव दैट वी मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग गुड सिस्टम्स. और इसके लिए आप जितना भी मतलब आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन, वो सारे यहाँ पे आपको करने हैं. और सिस्टम अगर आप बिल्ड करते हैं तो यू नो इट हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि आपकी अच्छी गवर्नेंस हो. और गुड गवर्नेंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके, वेदर इट इज़ ट्रांसपेरेंसी, इट विल इम्प्रूव बाय द सिस्टम, वेदर इट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस कि आपका सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को, वेदर इट इज़ एफिशिएंसी, वेदर इट इज़ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, डिस्क्रिशन आपका सिस्टम में काफ़ी कम रहता है, तो इससे पॉसिबिलिटी इधर उधर होने की वो भी कम हो जाती है. सो ऑल द पैरामीटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, वो सारे आप अच्छे सिस्टम बिल्ड करें तो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं. सो दिस इज़ यू नो बहुत बड़ा बेनिफिट. अब आप जैसे देखें कि मैं जो एग्जांपल दे रहा था आपको कि आप सिस्टम से चीज़ों को अप्रोच करें. एक नया अभी सिस्टम आया है जिसमें कि हम लोग पहले भी था ये सिस्टम, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी गवर्नमेंट काफ़ी बात कर रही है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी वांट टू यू नो इम्प्लीमेंट. अब इसमें आप देखिए कि अटेंडेंस आपने ये कर दिया, ऑटोमेटिकली यू विल इन्फ्लुएंस एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल. तो आपको अगर कोई किसी का, इफ़ आई वांट टू एलिसिट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम यू, अगर मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से बिहेव करें, तो वन वेज कि मैं आपको बताऊँ कि आप जो है इस तरह से आप यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर फैशन, यू मे नॉट, उसमें हो सकता है बताने में फ्रिक्शंस भी हों या कुछ हों कि भाई आप इस तरह से करिए, आप ये ठीक नहीं है या आप गलत करिए. इफ़ आई क्रिएट अ सिस्टम एंड अ कंडीशंस एंड सिचुएशंस इस तरह की क्रिएट कर दूँ, यू आर ऑटोमेटिकली इंसेंटिवाइज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर बिहेवियर. आप वो करने के लिए खुद ही इंसेंटिवाइज हों. सो दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, इज इट नॉट. इससे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. मैं इसी ऑफिस में था, मैं तो नया पहुंचा था ट्रैफिक अकाउंट्स पे. इट वाज माय फर्स्ट डिमांडेड पोस्टिंग. आई वाज हेडिंग दैट ऑफिस एंड दे वर अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 200-250 के करीब का नीचे स्टाफ था पूरा. अब उसमें ये इन गवर्नमेंट और इन एवरीवेयर यू हैव अ सिस्टम की एक अटेंडेंस रजिस्टर आपका रखा रहता है. लोग आते हैं उसमें मॉर्निंग में दे मार्क देयर अटेंडेंस, साइन वाइन करते हैं. उसके बाद में देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम जिस पे कि अटेंडेंस रजिस्टर क्लोज हो जाता है, वो रख जाता है. उसके बाद में जो भी आता है इट इज़ मार्क्ड एब्सेंट, और वो एक सिस्टम है. ये जो क्लोज होता है अटेंडेंस दिस पर्टिकुलर टाइम पे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लोअर ऑफिसर कोई करता है नीचे, जिसके पास में रजिस्टर रखा रहता है. वो आता है, वो उसको क्लोज करके ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है. अब उसमें ये है कि आपके पास में लोग आ रहे हैं, तो आई वाज सेइंग कि लोग जो है लेट भी आ रहे हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं, एंड स्टिल दे आर एबल टू मार्क द अटेंडेंस. सो आई हैड द ऑप्शन टू कॉल दैट ऑफिसर कि भाई आप ये इसको ज़रा टाइम से बंद करिए, ठीक करिए इसको, ये इतना अलाउ मत करिए. स्टिल आई कुड नॉट मॉनिटर इट ऑन ए डे टू डे बेसिस कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. फिर भी वो लेगा कि हाँ सर ठीक है मैं करता हूँ. या आई कुड टेक अप यू नो एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर एक्चुअली हैबिचुअली कमिंग लेट. तो वो चीज़ें कर सकते थे. दैट वाज मतलब दोज वर ऑप्शंस बिफोर मी. बट आई सिंपली सेड कि ऐसा करिए कि 10:30 लेट्स से इज़ द टाइम कि जिस पे होना है. तो आई टोल्ड माई पीए और उसको कि वो 10:30 बजे मेरे जो चैम्बर में सोफ़ा है उस पर आप इसको 10:30 बजे रख दिया करो उसको, अटेंडेंस रजिस्टर को. तो वो अटेंडेंस रजिस्टर सिंपली वहाँ ले आता था, वेदर इट इज़ क्लोज नॉट क्लोज, इट विल सिंपली कम इनटू माय चैम्बर, और वहाँ रखा रहता था वहीं पे ही. नाउ अगर सीनियर ऑफिसर के चैम्बर में जाना चाहे कोई स्टाफ, इट इज़ एन इनकन्वीनियंस, इट इज़ नॉट ईजी कि आप जो जाएंगे. तो 50% ऑफ द पीपल दे विल नॉट कम. आप इतना यू डोंट फील कंफर्टेबल एक्चुअली. कुछ लोग फिर भी आएंगे, दे विल नॉक एट माई डोर. आई विल आस्क कि क्या बात है भाई, तो ना वो बोलेंगे कि सर वो साइन करना था. आई नेवर रिफ्यूज एनीबडी. कभी मैंने चाहे भले वो 10:30 का टाइम है, 11:15 आया, 11 आया, वो मतलब वो इतना कोशिश कर रहा है कि नॉक करके फिर वो परमिशन ले रहा है कि एक तो परमिशन लेना ही बड़ा मुश्किल है कि आपको पूछना पड़ रहा है. मैंने कभी मना नहीं किया किसी को, और उसने बोला कि सर वो साइन करना, मैं कहा यस प्लीज़ दो, वहाँ रखा है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. वो किया. बट कितनी बार कर पाएगा वो 2 बार 3 बार, एंड एवरी टाइम ही इज़ बिन मार्क्ड. क्योंकि मेरे सामने आ रहा है, परमिशन ले रहा है, मैं उसका फेस देख रहा हूँ, तो उसको भी पता है कि हर बार मैं आ रहा हूँ तो मेरा फेस याद होता जा रहा है साहब को. तो ये तो सिंपली तो दिस सिचुएशन इम्प्रूव्ड ग्रेटली. से इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सिस्टम,
इट इज़ जस्ट कि आप कैसे, या उनको आप बताएं, एक्शन लें, फ्रिक्शन हो, इधर कार्रवाई करें उनके ऊपर, तो आप सिंपली उससे कर सकते हैं। तो बेसिकली यू मस्ट ऑलवेज थिंक, इट्स ए हैबिट। आप हैबिट इस तरह की डालें कि आपको हमेशा एड्रेस करना है या अप्रोच करना है चीज़ों को, तो एक सिस्टमिक वे में करना है और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। सो प्रॉब्ली दैट कैन यील्ड बेटर रिजल्ट्स, और वो काम भी मतलब बढ़िया होगा उससे। आई थिंक क्योंकि वही लोग सिस्टम समझते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ हाँ। कर दी, बट मे नॉट बी नेसेसरी एवरीवेयर। सो इट्स एन एटीट्यूड एंड हैबिट कि आप चीज़ों को किस तरह से एड्रेस करें। A small system, it could be a big system, but leading to a positive पॉजिटिव outcome. आउटकम्स। अब वो हो सकता है बिहेवियरल में हो या किसी और चीज़ में। राइट राइट। तो सर आपने क्योंकि ओवर द इयर्स आईटी एप्लीकेशंस के ऊपर रेलवेज में काफ़ी काम किया है, एज वेल एज सिस्टम्स बिल्ड करने में काफ़ी काम किया है, तो थ्रू आउट द जर्नी और कुछ ऐसे एग्जांपल्स या एनेक्डोट्स अगर बता सके जहाँ पे ऐसे कुछ कुछ माइनर ट्वीक्स या मेजर ट्वीक्स किए हों एंड उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आया हो। आई थिंक फिर आई वॉज पोस्टेड इन क्रिस एक्चुअली। तो क्रिस में ये एक बड़ा सिस्टम हम लोगों ने, मतलब इट वॉज अ मेजर सिस्टम इनफैक्ट, जो हम लोगों ने ये किया था ट्रैफिक अकाउंट्स वाला जो किया था, इट वॉज लोकलाइज्ड, एक उसमें किया था। बट देन देयर वाज अ थिंकिंग कि एक हमें एक बहुत बड़े लेवल पे मतलब ऑल इंडियन लेवल पे इंटीग्रेटेड तरीके से पूरा फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक सिस्टम डेवलप करना है, क्रिएट करना है और उसको पूरे में इम्प्लीमेंट करना है। तो जब क्रिस में गया तो आई वॉज गिवन दिस चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अकाउंट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक एम्स था पूरा। सो सर बिफोर वी गेट इनटू दीज डिटेल्स, क्रिस के बारे में थोड़ा आई थिंक हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सो जो आपका सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है CRIS, सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली, व्हाट इज द मैंडेट, एंड देन आई थिंक वी कैन गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट सिस्टम वी बिल्ड। या So actually CRIS, if you see, it is an IT arm of Indian Railways. So जितना भी IT का काम जो हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो भी कंप्यूटराइजेशन है जो भी हो रहा है और रेलवेज़ में जितना हो रहा है, CRIS इज़ द बैकबोन ऑफ दैट। पूरा काम CRIS में हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट का, तो पूरा IT का एक तरह से सेंटर है और पूरा बैकबोन है। इसमें शुरुआत इसकी हुई CRIS की, आई थिंक एट दैट टाइम फॉइस वॉज देयर, फ्रेट ऑपरेशंस के लिए एक सिस्टम डेवलप कर रहे थे। अर्ली 80s की बात है। और उसके बाद में फिर एक ये सोचा कि वी मस्ट हैव अ फुल फ्लेज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि IT की नीड्स को फीड कर सके और पूरा कर सके। सो इन 1986 इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ 1986 में एक CRIS करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इनिशियली जो है ये मेनली वर्क किसने किया, वॉइस वाला किया, और PRS वाले में आपने देखा होगा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। इसमें तो बहुत, इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स जहाँ की CRIS का जो रोल है और किस तरह से पूरा मतलब PRS सिस्टम ने किस तरह से चेंज कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मतलब आपको आई डोंट नो कि वो एक्सपीरियंस उस तरह का हुआ है कि नहीं, बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन मेटेरियली से, और मुझे बोकारो में ज्वाइन करना था, बोकारो स्टील प्लांट में सेल में ज्वाइन करना था। भरतपुर इज़ माई नेटिव प्लेस, तो वहाँ बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ से आगरा से मुझे ट्रेन पकड़नी थी और आगरा से ट्रेन पकड़ के जाना था धनबाद। ट्रेन आगरा से धनबाद से फिर बोकारो जाना था। तो आगरा से धनबाद के लिए रिजर्वेशन जब करवाना था तो भरतपुर में कोई रिजर्वेशन का वो ही नहीं था, और कुछ एजेंट्स हुआ करते थे जिनके पास में आप जाके अगर उनको बोलें तो वो करवा के कहीं से लेके आएंगे, और आगरा में था वो रिजर्वेशन का सेंटर जो करवा। तो वन फुल डे आई अलॉटेड टू दिस एक्टिविटी ओनली कि मेरे को एक रिजर्वेशन करवाना है। मॉर्निंग में मैंने बस ली, और बस लेने के बाद में देन आई वेंट टू आगरा। आगरा में एक लंबी लाइन लगती थी, उसमें उस लाइन में लगे, नंबर आया, नंबर आने के बाद में वहाँ एक वो काउंटर, आपको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, इन्फॉर्मेशन कुछ पता नहीं है, आप सोच के गए कि मेरे को इस ट्रेन में ये लेना है, वो वहाँ बैठेगा, वो बताएगा कि नहीं इस ट्रेन में तो वेटिंग मिल रहा है आपको, और कोई ट्रेन बताओ। तो फिर तुरंत से जल्दी से आप सोच के बताएंगे कि यार, और इतने इन द मीन टाइम जब तक आपको डिसीजन लेना है, इतना प्रेशर है कि पीछे वाले लोग अगर 2 मिनट भी हो गए तो वो हल्ला मचाना शुरू कर देंगे लाइन में, कह रहे भाई जल्दी करो जल्दी करो। तो इस तरह का वो फिर टिकट किसी भी तरीके से, अच्छा ठीक है, फिर जो भी आपने उस समय किया टिकट लेके फिर आप आ गए, और फिर शाम तक घर पहुंचा, क्योंकि फुल डे जस्ट फॉर सिंगल टिकट। एंड नाउ हाउ इट हैज़ चेंज्ड, you cannot imagine. Seconds you can book a ticket. So this is the kind of public delivery that IT systems can actually give. मेरे ख्याल से IT का जो रोल है पब्लिक डिलीवरी में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज रेलवेज ने किया है, तो PRS में दिखता है,
PRS इज द एक्चुअली इंटरफेस जो इंटरनल सिस्टम्स है हमारे, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी हम बताएंगे, और बाकी के वो तो इंटरनल हैं, इंटरनली दिखेंगे, बट पब्लिक को जो दिखते हैं वो इसमें दिखता है आपको। आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़बरदस्त यूज़ किया है, इन्फोसिस को एंगेज किया था और उन्होंने फिर एक पूरा पोर्टल किया। और एक पासपोर्ट में भी काफ़ी काम हुआ है। तो दीज आर एरियाज वेयर दे आर वेरी प्रोमिनेंट, वेयर IT हैज़ बीन यूज्ड ग्रेटली टू एफिशिएंटली डिलीवर पब्लिक सर्विसेज। एंड स्पेशली रेलवेज़ में, क्योंकि जैसे टिकट खुलता है फॉर एग्जांपल फॉर रिजर्वेशन, एकदम से भीड़ आ जाती है, राइट, स्पेशली तत्काल के समय या स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स ऑफ अ डे बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ रखती है पूरे सिस्टम्स की। तो इट वाज वेरी एसेंशियल टू हैव रोबस्ट सिस्टम्स इन प्लेस। IRCTC फॉर एग्जांपल जो वेबसाइट रहती है कि वो एकदम क्रैश ना करे। आई थिंक इनिशियली देयर वर सर्टेन चैलेंजेस, उसको ओवर द टाइम आई थिंक काफ़ी हद तक ठीक कर दिया गया है। तो उसमें आई थिंक क्रिस का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। जी सर। सो आप बता रहे थे कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के इसमें आपने AIMS सिस्टम पे भी काम किया था। तो व्हाट इज़ AIMS सिस्टम? तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ AIMS एंड देन व्हाट वाज द इंटरवेंशन। सो एक्चुअली AIMS इज अकाउंट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम ट्रैफिक अकाउंट्स में आई वाज वर्किंग, सो आई इम्प्लीमेंटेड ए लोकलाइज्ड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स अकाउंटल की, और वो किया था। बट देन देयर वाज अ थिंकिंग कि आप जो पूरे इंडियन रेलवेज़ में एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम हो। ये ग्रेजुअली अब जो थिंकिंग है, इट इज़ नॉट फॉर डेवलपिंग लोकलाइज सिस्टम्स एंड बिट्स एंड पीसेस में कहीं कहीं कर दिए। इट कॉस्ट यू मोर ऑल्सो, बिकॉज आप उसके लिए प्रोजेक्ट सेंक्शन कराएंगे, इसके लिए कराएंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो दिस थिंकिंग वॉज देयर इन दैट टाइम, 2010-12 से ये था कि हमें एक बड़ा सिस्टम, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन रेलवेज वो करना है। एंड दैट वाज कंसीव्ड एज अकाउंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसको हम लोगों ने, तो इसमें डिज़ाइन डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व था, एंड दिस वाज डन बाय क्रिस। और क्रिस में इसको किया, आई थिंक अगर कोई प्राइवेट किसी इन्फोसिस, TCS, इन बड़ी कंपनीज को अगर आप देते हो उसको, तो मेरे ख्याल से जितने में क्रिस ने काम किया, जितने पैसे में हो गया काम, कम से कम 10 टाइम्स उसका वो लगता। लेकिन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो डेवलप हुआ, डिज़ाइन हुआ। क्रिस का एक यूनिक एडवांटेज मुझे जो लगता है वो ये है कि क्रिस में एक तो टेक्निकल लोग हैं, करीब 700-800 के करीब में टेक्निकल लोग हैं, जो कि पूरा टेक्निकल टीम है और डेवलपमेंट पे काम करते हैं। एंड देन पीपल फ्रॉम रेलवेज दे कम ऑन डेपुटेशन टू क्रिस एंड दे हैड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उनको हेड करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज फ्रॉम रेलवेज, आई वेंट देयर ऑन डेपुटेशन टू क्रिस एंड आई वाज हेडिंग दिस। सो सिंस आई हैव वर्कड इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स इन द फील्ड, और मैं काफ़ी चीज़ें पता है, तो वो डोमेन नॉलेज, डोमेन एक्सपर्टीज जो है, दैट आई हैव विद मी। सो देर आर बेटर चांसेज ऑफ डेवलपिंग अ गुड सिस्टम। और वो फिर एक लिंक भी रहता है कि जो ऑफिसर गया है, दो ही इज़ ऑन डेपुटेशन, ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ क्रिस, बट ही हैज़ रूट्स इन रेलवेज। तो वो एडवांटेज मुझे लगता है ये क्रिस के साथ में बड़ा यूनिक एडवांटेज है। एंड दैट इज़ वाई मैनी प्रोजेक्ट्स, अभी तो क्रिस काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से 70-80 प्रोजेक्ट्स अभी हैंडल कर रहा है, डिफरेंट अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। और अब एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि अब ये है कि अब इवन जैसे फाइनेंस अकाउंट्स का एक उसमें आ गया, एक सिंगल सिस्टम हो गया। सिमिलरली यू गॉट लेट्स से मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम एक हो गया, यू गॉट दिस PRS सिस्टम एक हो गया, यू गॉट ए क्रू मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो अब ये है कि अब ये सिस्टम भी इंटीग्रेटेड हो गए, वो एक यूनिक मतलब सिंगल हो गए, बट आपस में भी अब ये इनका पूरा एक कनेक्शन होना है, क्योंकि जो डेटा कहीं से आना है, फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस एंड अकाउंट पे डेटा क्रू मैनेजमेंट सिस्टम से आना है, तो दैट शुड फ्लो फ्रॉम दैट सिस्टम ओनली। तो ये किस तरह का जो इकोसिस्टम क्रिएट जो हो रहा है, दैट इज़ द दैट इज़ एक्चुअली द ट्रू सेंस दैट इज़ द यूज़ ऑफ IT, जो कि इंटरनली यूज़ हो रहा है। एंड नॉट ओनली विद इन द सिस्टम, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं कि अपने इंटरनल जो रेलवे के सिस्टम्स हैं उन्हीं के साथ नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे एम्स की मैं बात कर रहा था, ओके, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये जो हमने किया, तो इसमें not only we integrated with our internal systems, रेलवे के जो systems हैं, we integrated it with the outside systems also. Like we have integration with Ministry of Finance, budgeting और उन सब के लिए है. We have integration with NSDL, जहाँ की जो न्यू पेंशन स्कीम के जो सब्सक्रिप्शन वगैरह जाते हैं तो डायरेक्टली डेटा के थ्रू होते हैं. We have integration with banks, सिस्टम जो है डिफरेंट SBI के साथ में और बैंक के साथ में, जहाँ की आपके जो
पेंशन पेमेंट्स हैं या पेंशन पेमेंट्स ऑर्डर्स हैं वो हैं. वी हैव इंटीग्रेशन विद डिजी लॉकर ऑल्सो कि वहाँ आपके वो दिख जाते हैं. तो इवन एक तरह से बड़ा एक सिस्टम होता है, इंटरनल सिस्टम्स आप आपस में लिंक्ड हैं और आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ में भी आपके लिंकेजेस हैं. तो एक तरह से पूरा ये इस तरह से सिस्टम बनता जा रहा है, एंड विच इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ रेलवेज इन अ ग्रेट वे. अभी आप देखिए, अगर आप बात करें एम्स का, अगर बेनिफिट्स की बात करें, तो एक तो ये है ही कि इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन. अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पहले जब मैं फील्ड में था, वो आज से 15-20 साल पहले जब ये सिस्टम नहीं थे, तो उस समय पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी उससे रिलेटेड, तो उसमें रेलवे मंत्री जी को बोला, मिनिस्टर वांट्स टू हैव सम इन्फॉर्मेशन या मेंबर फाइनेंस वांट्स टू डिस्कस सम थिंग्स विद, तो दे विल नीड इन्फॉर्मेशन. तो उसमें वो बोर्ड में एक जो भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो सभी जोनल रेलवेज़ को फ़ोन करेगा, सारे जोनल रेलवेज़ को एक फॉर्मेट बनाएगा, सर वो फॉर्मेट फैक्स कर दिया है और ये इन्फॉर्मेशन हमें इमीडिएटली चाहिए. वो बोला ठीक है, बाय 2 PM दिस इन्फॉर्मेशन शुड कम टू बोर्ड. वो फिर वो नीचे डिवीजन्स में जाएगी, वो उसको फैक्स को भेजेंगे, वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से कंपाइल करो. वो नीचे से सब सारे डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, वो सब कंपाइल कर रहे हैं, पूरा कंपाइल करके जोनल रेलवे भेजी. जोनल रेलवे इधर से बोर्ड चेज कर रहा है कि भाई टाइम हो रहा है, आप जल्दी लेके आइए, जल्दी लेके आइए. फिर 2 बज जाएंगे, फिर इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ की इन्फॉर्मेशन आ गई कहीं से, और बोर्ड को भी फिर वो कंपाइल करनी है, फिर प्रेजेंट करनी है उनको. फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, कुछ नहीं आ गई है, एंड एवरी टाइम जो बोर्ड से चेज कर रहा है वो बोलेंगे जोनल रेलवे में कि सर वो आधे से आई, आधे से भी नहीं आई है, बट स्टिल ही विल से कि सर सब जगह से आ गई है, बस आपके ही रह गई है, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. अच्छा. हाँ, वो कंपाइल होकर फिर. नाउ आई थिंक व्हेन आई वाज देयर इन क्रिस, our member finance wanted an information about GST, IGST और CGST कितना कितना क्या है, तो that information. And since it was centralized information और access था, अब वो जोनल रेलवे जाने की जरूरत ही नहीं है किसी से पूछने की, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो सिस्टम पे है. और immediately within half an hour I could gather the information in a format that was required, और उसके बाद में उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस और वो सारा करके और डिफरेंट तरीके से उसको स्लाइस करके ट्रांसलेट वो करके आई कुड गिव इट विद इन हाफ एन आवर टू मेंबर फाइनेंस. और शी वाज सो हैप्पी कि वो ये इतना बढ़िया एनालिसिस और इतना इट मेड इमीडिएटली इट मेड सेंस. तो भाई इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ी दिक्कत है कि द वे इट इज प्रेजेंटेड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मे मेक ए सेंस टू यू, इट मे नॉट मेक ए सेंस टू यू, दैट डिपेंड्स ऑन द वे यू गिव द इन्फॉर्मेशन. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन का फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स जो है वो काफ़ी इससे इम्प्रूव हुआ एम से. कि आपने एक अभी आप मान लीजिए DA चेंज होता है आपका, दैट गोज फ्रॉम 46 to बेसिकली पहले हर आदमी अपने अपने सिस्टम में चेंज करेगा. यहाँ एक सिस्टम थोड़ा सा किया और इमीडिएटली इट इज़ अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री. सो ये जो आप पेंशन के PPOs में देख लीजिए, पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं, कि कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है और रिटायर करने के बाद में टेक सम टाइम, तो अर्लियर इट यूज्ड टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लग जाते थे, करीब 2-3 महीने, और 2-3 महीने बाद आपकी सैलरी मिली, फिर पेंशन 2-3 महीने बाद स्टार्ट होगी. नाउ वी हैव अ सिस्टम ऑफ EPPOs, राइट. तो अब वो इलेक्ट्रॉनिकली फ्लो करते हैं, एंड दिस लॉट ऑफ पहले फिजिकली जाएगा, फिर वो जाएगा वहाँ पे, फिर CPC से फिर अपने बैंक जाएगा, फिर वो शुरू होगा, तो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स. सो दिस इज अ ग्रेट पब्लिक डिलीवरी जो कि आप गवर्नेंस आपने इम्प्रूव कर दी. सो ऑल दी सिस्टम्स दे हैव रियली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल गवर्नेंस टू द पब्लिक. राइट सर, आपने जैसे एग्जांपल जो दिया था कि जोनल लेवल पे कंपाइल करके दे रहे थे, उसमें कितना टाइम पहले लगता है, जो आपने बोला अभी आधे घंटे में आप कर पा रहे थे? वो टाइम एक्चुअली दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सपीडियंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कि कौन मांग रहा है, कब मांग रहा है, वो कोशिश करता है आदमी, लेकिन वो है टाइम उसमें लगता था. वो पता लगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन 2 घंटे के अंदर आपको कंपाइल करनी है, वो शाम तक भी वो सर अभी रह गई, अभी चल रही है, अभी हो रही है, तो वो चीज़ होती थी. बट दैट वाज द वे, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन जो जनरेट हो रही है वहीं पे वो दे आर होल्डिंग दैट इन्फॉर्मेशन. तो अगर आपको चाहिए तो वहीं से आपको पूछना है, वहीं से करना है कि भाई ये वो करो. राइट. सो आई थिंक इसमें कितने टाइप के चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया? आपने कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे पेंशन्स हो गए, या फिर आपके GST इन्फॉर्मेशन है. सो कितने टाइप की इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड किस टाइप का डैशबोर्ड है? मतलब इफ़ यू कैन जस्ट मे बी ले इट आउट फॉर आवर व्यूअर्स कि किस टाइप का डैशबोर्ड है, क्या क्या दिखता है, व्हाट ऑल काइंड ऑफ डेटा समवन कैन वॉच इन दिस. तो इसमें एक्चुअली देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स अच्छा. of this aims, और each module caters to each specific area of working of finance and accounts. जैसे इसमें सैलरी वाला मॉड्यूल है तो सैलरी से डील करता है, प्रोविडेंट फंड का मॉड्यूल है, पेंशन का मॉड्यूल है, सेटलमेंट का मॉड्यूल है, इंटरनल चेक का मॉड्यूल है दैट डील्स विद ऑल द पेमेंट्स, वेंडर पेमेंट्स, आपको आउटसाइड पार्टीज़ के पेमेंट्स करने हैं, उनका मॉड्यूल है.
बुक्स का मॉड्यूल है, बुक्स में अकाउंटल कीपिंग करना है, आपके जो बजटिंग है, बजटिंग एक्सरसाइज उसके मॉड्यूल्स हैं, आप फिर इसको लिंक कर रहे हैं, इसमें एक अर्निंग का एक हमने बनाया हुआ, तो अर्निंग वाला भी डेटा इसके साथ में एक्सचेंज होता है, तो वो है, वो सारी चीज़ें सारे मॉड्यूल्स हैं। और वो इनफैक्ट अभी जैसे एम्स है तो इट इज़ हैंडलिंग ऑलमोस्ट आई थिंक 30,000 करोड़ ऑफ पेमेंट्स एवरी मंथ, 30,000 करोड़ रुपए के पेमेंट हर महीने इस उससे। जैसे बाकी मिनिस्ट्रीज में आई थिंक देयर इज अ सिस्टम ऑफ पीएफएमएस का एक सिस्टम है ना कि जो बाकी मिनिस्ट्रीज में सेम फंक्शन करता है, तो इट इज़ एक्चुअली वो पीएफएमएस का ही एक तरह से वो है इन रेलवेज एम्स जो है, वो जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम उनका जो है बाकी मिनिस्ट्रीज में, तो उसी तरह से फंक्शन जो है। एंड द डैशबोर्ड इज एक्सेसिबल, डैशबोर्ड, हाँ, एक्चुअली इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन वो कोशिश करते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन विच इज़, एंड वी आर मोर फोकस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रेलेवेंट टू द आउटसाइड पार्टीज, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये आपके वेंडर्स हैं, दे आर कंसर्न अबाउट देयर पेमेंट्स, कि उनको पेमेंट सही तरीके हो जाए, तो उसके लिए भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने ये पेमेंट दिया है, इस स्टेज पर है, या इतने हो गए आपके पेमेंट्स, या इतना डिलीवर होके, वी ट्राई टू गिव एसएमएस ऑल्सो कि आपका पेमेंट पहुंच गया है या इतने, सो दैट सी जितना आप इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे सिस्टम के थ्रू, यू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ आईटी सिस्टम्स, कि वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बड़ा आसान हो जाता है, और डिसेमिनेशन, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आई एम श्योर कि बजट जब बनता भी होगा तो इस सब की डेटा क्योंकि काफ़ी रेडिली अवेलेबल है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं उसमें, हेल्प करती हैं उसमें। सो बट इतने बड़े सिस्टम्स को जब बनाते हैं, जब सेटअप करते हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे, विच कुड बी इंटरनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस। जैसे आपने एक आई थिंक मेंशन भी किया था कि हम इंटरनली इसको बनाएं या वेंडर बाहर किसी प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स करें, टीसीएस या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे और कौन कौन से टाइप के चैलेंजेस हैं या क्वेश्चंस थे जो सॉल्व करके फिर आगे बढ़ा गया बेसिकली? सो ये जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया एम्स का, तो अगर हम देखें तो इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक स्टेज थी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हमने करवाया अक्रॉस द रेलवेज। तो पहले डिज़ाइन और डेवलपमेंट में जब हमने किया, तो जो चीज़ मतलब जो डिफ़िकल्टी मुझे महसूस हो रही थी इसमें, वो डिफ़िकल्टी ये थी कि जब हमें कोई मॉड्यूल डेवलप करना होता था, तो उसमें एक कंसेप्ट मतलब कंसीव करते थे कि इस तरह का मॉड्यूल है, रिक्वायरमेंट्स आपके बोर्ड से या रेलवे जो इन्वॉल्व थी इसके उसमें वो आती थी, और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वी स्टार्टेड डेवलपिंग दैट। तो लेकिन वो रिक्वायरमेंट जो थी दे वर नेवर फ्रोजन एक्चुअली। फिर जब सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उसके बाद में कर दिया, फिर एक और रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि अच्छा इसमें ये वाला फीचर और हम ऐड करना चाह रहे हैं, इसको आई थिंक दैट इज़ इनहेरेंट टू एनी सिस्टम। वो इसी सिस्टम के साथ नहीं, कोई भी सिस्टम आईटी का डेवलप करेंगे तो आप शुरू में, बट बिकॉज इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कैप्चर द एंटायर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन वन गो, आप शुरू में आप नहीं इतना समझ पाते हैं, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। तो उसमें ये चीज़ें थी कि फिर हमें लगता था कि अच्छा ये डिज़ाइन के, लेकिन इसमें ये इशू आ रहा है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ती चली, स्कोप प्रोजेक्ट का बढ़ता चला जाता था, और जिसकी वजह से उसमें टाइम एंड कॉस्ट ओवररुन्स के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती थी। तो एक बड़ा चैलेंज हमें ये लगता था, और इसको हम लोगों ने एड्रेस भी करने की कोशिश करते थे, बिकॉज आई वॉज देयर। तो वो था, तो उसमें हम मतलब उसको देख रहे हैं कि किस तरह से इनको हम पहले से ही कंसीव कर सकते हैं। देन देयर वाज अ टीम, वो हमने अक्रॉस रेलवे बोर्ड ने टीम बना दी थी, जिसमें कि एक जोनल रेलवे की टीम है जिसमें डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शंस थे। तो वो टीम हमें इनपुट्स देती थी, बिकॉज वट एवर सिस्टम्स वी आर डेवलपिंग, तो सिस्टम में यही है कि आपको यू हैव टू डू इट एग्जैक्टली एज पर रूल्स, क्योंकि अगर वो रूल मैनुअल में गड़बड़ हो गया तो एक ही इंस्टेंस में जाएगा, कुछ जाएगा, बाकी सिस्टम में अगर हो गया तो इट विल अक्रॉस द बोर्ड वो सारा गड़बड़ हो जाएगा पूरे इस तरह का। तो इसीलिए उसमें बहुत केयरफुल, और अगर रूल्स के इंटरप्रिटेशन में कहीं गड़बड़ है तो दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द बोर्ड, क्योंकि कई बार रूल्स के इस तरह के होते हैं कि यू कैन आइदर इंटरप्रेट स्लाइटली दिस वे और दैट वे, इस तरह का भी होता है। बट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम यू हैव टू हैव ओनली वन पोजीशंस, कि या तो इस तरह से करना है। उसके लिए हमें देन वी हैव टू अप्रोच द रेलवेज बोर्ड, या कोई वो इंटरप्रेट करके ठीक बताएगा कि इसको इस तरह से करना है, देन वी विल इम्प्लीमेंट इट। तो उसमें करते थे कोशिश, बट ये एक चीज़ मुझे लगी कि जिसमें रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, स्कोप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लंबा खिंच जा रहा है। तो वो एक दूसरा एक जब इशू था, तो मैंने बताया आपको कि इम्प्लीमेंटेशन में जब इतना बड़ा सिस्टम कर रहे हैं, तो जब लोगों को जाते थे जिन यूनिट्स में हमें करना है कि आपने डेवलप कर लिया, फिर उनको बताते थे कि ये सिस्टम हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो रेजिस्टेंस अगेन,
उनका ऑलरेडी एक लोकलाइज, जैसे मैंने अगर ट्रैफिक अकाउंट्स में वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप कर दिया और मेरे पास में कोई आएगा कि भाई अब हमें एम्स करना है, आप यहाँ से इसको वो करके और एक पूरा सिस्टम बनेगा, तो उस केस में फिर देन आई विल ऑल्सो, एंड इट्स माई बेबी, तो मुझे लगेगा कि यार वो मेरा तो बढ़िया चल रहा है, इतना अच्छा है, एंड देन पीपल विल कम इन विद ऑल एक्सक्यूजेज कि इस सिस्टम में तो ये आपके में ये नहीं हो पा रहा है, हमारे में तो ये भी हो जाता है, नहीं ये तो इस तरह का था। बट वो रेलवे बोर्ड जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, बोलता है कि नहीं यू हैव टू इम्प्लीमेंट, एंड वो, बट उसमें हम लोग करते थे कि इवन आई वेंट टू मैनी यूनिट्स, और टीम जाती थी हमारी, वी यूज़ टू मेक ए प्रेजेंटेशन, उनको देते थे, बताते थे सिस्टम के बारे में, और उनके जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर करते थे, और उसके बाद में तो एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती थी, प्लस विद द फोर्स ऑफ बोर्ड, तो ग्रेजुअली वी वर एबल टू डू इट, एंड when I left CRIS, तो this AIMS was fully implemented across the Indian Railways पूरा। दूसरा एक जो इशू जो आपको बता रहा था, उसमें लेगेसी डेटा का बहुत बड़ा इशू आया, जो मैंने उसमें भी बताया था ट्रैफिक अकाउंट्स में, इसमें भी यहाँ पे डेटा, तो इसके लिए हम लोगों ने फिर काफ़ी जो वैलिडेशंस थे, जो टेक्निकल टीम हमारी, जैसे आप अगर कर रहे हैं, आपका मैनुअल सिस्टम में किसी का डेट ऑफ बर्थ है, किसी का नहीं है, या ओल्ड सिस्टम में कोई गलत पड़ा हुआ है जिसका यूज़ नहीं हुआ, आप जहाँ न्यू सिस्टम में जाएंगे आप, तो कि वो गलती आ गया, फिर उसके बाद में क्योंकि सिस्टम तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेगा, और तो दैट विल एक्चुअली डिफीट द पर्पस ऑफ हैविंग दिस सिस्टम। तो उसमें फिर वैलिडेशंस की टेक्निक लगा के वो कि आप उसमें वो डेटा उस तरह का गंदा जा ही ना पाए और उसको करेक्ट करवाएं, तो वो चीज़ें काफ़ी की, जिससे काफ़ी मतलब वही, तो ये सब चैलेंजेस थे, बट ग्रेजुअली दिस दैट वर। इनफैक्ट हम लोगों ने एक क्रिस की हमारी टीम तो सेंट्रल क्रिस में दिल्ली में थी ही, बाकी डिफरेंट उसमें जैसे भुवनेश्वर में एक टीम हमने बिठाई हुई थी, कलकत्ता में थी, लखनऊ में भी एक टीम थी, तो इस जगह पे तो ताकि जो वहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इमीडिएटली अगर उनको कोई इश्यूज़ आए तो आवर टीम इज़ देयर टू सपोर्ट देम, क्योंकि आप जो है जब कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करने हैं तो जिसको जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको भी आपको एक तरह सेटिस्फाइड रखना है, उसको बीच में ये ना लगे कि नहीं यार ये कुछ सपोर्ट नहीं मिलती है, वो नहीं होता, तो दैट वाज ए चैलेंज कि वी हैव टू इमीडिएटली गिव सपोर्ट, ताकि वो हो के वो एक तरह से डिसएंचेंटेड ना हो जाए सिस्टम से कि नहीं यार ये नहीं करना है, तो दीज वर चैलेंजेस एंड समहाउ वी आर एबल टू डू इट। सर जनरली आईटी सिस्टम्स के साथ एक चैलेंज ये भी रहता है, पीपल फील कि उनकी जॉब्स ना चली जाएं, तो इस टाइप के भी कोई रेजिस्टेंस दिखा पाए क्या आपको? मुझे लगता है बहुत शुरू में था ये इस तरह का, बहुत शुरू में, आज से 20-25 साल पहले काफ़ी यूनियंस भी आती थी, बट अब मेरे ख्याल से इतना नहीं इस तरह का रेजिस्टेंस इस तरह का एटलीस्ट हम लोगों ने फेस नहीं किया। जी। सो विनीत जी, आप अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इन RDSO इन उत्तर प्रदेश, तो पहला ये सवाल ये है कि RDSO क्या होता है, उसका मैंडेट क्या है एग्जैक्टली? सो RDSO इज़ बेसिकली रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वो है, जैसे मैंने बताया कि क्रिस जो है दैट इज़ एन IT आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज, IT का जितना भी फंक्शंस हैं उसके लिए क्रिस है इंडियन रेलवेज के पास में। इन अ सिमिलर मैनर यू हैव RDSO फॉर ऑल टेक्निकल मैटर्स, रेलवे के जो टेक्निकल मैटर्स हैं उनमें रेलवे बोर्ड को एडवाइस करने के लिए दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एज द नेम इट सेल्फ कंटेन्स, इट इज़ इन टू द रेलवे रिसर्च and developing various standards. So that kind of activities, actually design and development and research into railway technology, it is doing at present. So what are the kind of latest standards and technologies that RDSO is currently underway, kind of maybe researching, कुछ वो deployment पे हो या recently deploy किए गए हों, तो वो I think our viewers would love to know. See, a lot of technologies on which RDSO is working. RDSO में डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं जी। सो फॉर एग्जांपल RDSO इज़ गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टरेट का वो है ट्रैक्स हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो वर्क्स हैं उन पे ये रिसर्च करती है, ब्रिजेस एंड ऑल दोज थिंग्स। वी गॉट लोको डायरेक्टरेट, जो लोको डिज़ाइंस हैं और लोकोमोटिव्स हैं उनके ऊपर ये रिसर्च और वो करती है। वी गॉट कैरेज एंड वैगन्स की डिज़ाइंस हैं, अभी जैसे रिसेंट काफ़ी वैगन्स पे चल रहा है और कैरेज वाले उसमें भी कि डिफरेंट किस तरह से डिज़ाइन करें, इट इज़ एबल टू कैरी मोर लोड, वॉट एवर, दीज ऑल टेक्निकल मैटर्स। और कैरेज में जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो नए कैरेज आते हैं उसमें डिज़ाइन चेंजेस हो जाते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ लग गई, कहीं पे और इम्प्रूव कर दिया, तो कॉन्स्टेंटली जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस हैं उनको इम्प्रूव करना या न्यू डिज़ाइंस जो है करना, दैट इज़ ऑल फंक्शंस दैट आर बीइंग डन बाय RDSO। और इसमें बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे काफ़ी काम होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लाइक अभी तो जैसे कवच जिसकी एक टेक्नोलॉजी है जो कि अभी रिसेंट जो एक्सीडेंट्स हुआ उसके बाद में इस पर काफ़ी फोकस भी है इस टेक्नोलॉजी पे,
So that has been developed by RDSO in India. कवच सर अगर आप बता पाएँ थोड़ा. So actually कवच में क्या है, ये it has been developed by RDSO in signals directed. तो ये कवच इस तरह की डिवाइस है जो कि RFID टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और इसको आप ट्रैक में ट्रैक पे लगाते हैं और लोकोज में स्टेशंस पे लगा देते हैं, और जिससे दिस इज़ एबल टू एक्चुअली डिटेक्ट द सिग्नल्स के थ्रू कि अगर कोई ट्रेन सेम ट्रैक पर है या कोई एंटी कोलिजन डिवाइस जो है, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इट्स ए ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम काइंड ऑफ. और इसमें फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन जैसे अगर कोई लेवल क्रॉसिंग से जा रही है तो ऑटोमेटिकली विसिल ब्लो कर देगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज़ से. अगर किसी ने स्पैड कर दिया, स्पैड इज़ बेसिकली सिग्नल पासिंग एट डेंजर, वो अगर कर दिया, रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली दिस विल डिटेक्ट एंड अप्लाई द ब्रेक्स इवन दो द लोको पायलट इज़ नॉट एबल टू अप्लाई द ब्रेक्स. सेम ट्रैक पर अगर हैं तो इट विल डिटेक्ट एंड अप्लाई द ब्रेक्स एंड दे विल स्टॉप. सो ब्रॉडली इस तरह की टेक्नोलॉजी इट इज़ एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस अभी है, बट ये टेक्नोलॉजी ये टेस्ट भी की थी, और उसका एक वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें फ्रॉम वन साइड दे वाज ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड फ्रॉम अदर साइड आवर चेयरमैन रेलवे बोर्ड, और एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन जो है आ रही हैं, और आने के बाद में जब आई तो इस सिस्टम ने, कवच सिस्टम ने डिटेक्ट करके एंड इट अप्लाइड ब्रेक एंड द बोथ ऑन द सेम ट्रैक दीज बोथ ट्रेन्स स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300-400 मीटर की डिस्टेंस पे रुक गई थी ट्रेन. तो वो टेस्ट भी आई थिंक 1-1.5 साल पहले वो हुआ था. तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इट कैन एक्चुअली एनहेंस द सेफ्टी सेफ ऑपरेशंस ऑफ इंडियन रेलवेज. और ये इंडिजियसली पूरी RDSO ने दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड. इट इज़ वेरी चीप. अगर सिमिलर टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो इसका आई थिंक इसकी कॉस्टिंग जो है पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आएगी तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs और सो. और सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, इफ़ यू गो आउटसाइड वर्ल्ड में, तो उसमें इट विल बी एटलीस्ट 3 times आई बिलीव. So that's a very good technology that our signals directorate has developed, this Kawach technology. जी. सो आई थिंक क्योंकि काफ़ी इंस्टेंसेस होते रहते हैं बीच बीच में आते हैं कि कोलिजन हो गया है, तो आई थिंक विद दीज सिस्टम्स इन प्लेस थ्रू आउट द कंट्री इंस्टेंसेस और कम होते जाएंगे. एब्सोल्युटली बिकॉज अभी कुछ में लग गया है एंड दे आर प्रोजेक्ट्स इन प्रोसेस जिसमें कि और पे एक्सचेंज है, बट दिस टेक्नोलॉजी इज स्टिल आई मीन इट हैज़ बीन टेस्टेड, but as I said, a lot of work is to be done really in this technology itself and its implementation actually. Right. Sir, as an executive director of finance in RDSO, what is your role and आपके पूरे जो division है उसका क्या responsibility होती है within the ambit of what RDSO is taking care of? So I told you the role is exactly similar as any finance and accounts organization in any organization will do. So इसमें जो RDSO के जो जितने भी हैं अकाउंट्स रोल, जैसे मैंने बताया आपको कि वो पूरा रोल प्ले करेंगे. जितने आई थिंक अराउंड 3000 एम्प्लॉइज़ आर देयर राइट नाउ इन RDSO. सो उनका सारा है ऑल वेंडर पेमेंट्स. इसके अलावा जो फाइनेंस के रोल्स हैं उसमें जितने भी ये प्रपोजल्स हैं फाइनेंस है, दैट वी हैव टू अप्रिशिएट, दैट वी हैव टू क्रिटिकली स्क्रूटनाइज, और उनको करना है. उसके बाद में देन वी हैव टू एडवाइज ऑन एनी फाइनेंशियल मैटर, वी हैव टू एडवाइज द डायरेक्टर जनरल ऑफ RDSO. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ रोल दैट वी आर प्लेइंग. सो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया अबाउट रेलवेज, अबाउट इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, अबाउट योर जर्नी ऑफ ब्रिंगिंग इन सिस्टमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज IT एप्लीकेशंस इन रेलवेज. वुड वांट टू नो यू अ लिटिल पर्सनली एज वेल. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आवर व्यूअर्स वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि आप अपार्ट फ्रॉम वर्क क्या क्या करते हैं, कैसा है, उसके बारे में कुछ सवाल हैं. तो पहला सवाल है कि एज अ किड आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाउ वर यू एज अ किड एंड हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? I did my schooling from Bharatpur. I belong to Bharatpur. That is my native place. And during the schooling, I was good in studies. So always stood first. In fact, I topped Rajasthan board also in 1988. Right. So I was the topper there. So that was one part. In sports, I was not, I used to play sports, but I was not very good, you'll say. And I will call myself a very shy and introvert kind of person. I was introverted. I am introverted person.
एंड टिपिकल हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इनफैक्ट मेरे फादर मदर जो थे वो देवर टीचर्स, तो दोनों स्कूल जाते थे, तो घर पे भी मैं काफ़ी काम वाम करता था, किचन का सारा काम कर लेता था, सब अभी भी वो है। और टिपिकल हिंदी मीडियम स्टूडेंट, 12th तक मेरा पूरा पढ़ाई जो है सब हिंदी मीडियम में हुआ? एब्सोल्युटली हिंदी मीडियम। इनफैक्ट अंग्रेजी में नंबर अच्छे आते थे, मतलब एज अ सब्जेक्ट आई वाज गुड इन इंग्लिश, क्योंकि मेरे हमेशा नंबर वगैरह अच्छे थे। बट यू नो मीडियम इंग्लिश होना और सब्जेक्ट पढ़ना तो हमें डिफरेंस होता है, तो वो था। इनफैक्ट व्हेन आई जॉइंट आईआईटी आफ्टर माय स्कूलिंग, तो उस वक्त पे तो अंग्रेज़ी बोलना बड़ा मुश्किल था। और जब शुरू में मैंने क्लासेस अटेंड की, और वहाँ इंग्लिश मीडियम था पूरा आईआईटी में, तो जब वो टीचर्स पढ़ाते थे या प्रोफेसर्स जब पढ़ाते थे, तो आई रिमेंबर कि आई वॉज अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट विद द प्रोफेसर, कि कहीं आई कॉन्टैक्ट हो गया, उसने पूछ लिया कि हाँ भाई ये बताइए तो मैं अंग्रेजी में क्या बोल पाऊँगा, तो उस तरह का था। बट लेटर आई थॉट दैट ये वीकनेस जो है इसको, एंड आईआईटी इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। आईआईटी का सिस्टम इतना अच्छा है कि जैसे मेरा जो कोर डिपार्टमेंट है उसमें मैं गया, तो यू हैव टू कंप्लीट 195 क्रेडिट्स जो आपको कंप्लीट करने होते हैं टू गेट अ बीटेक डिग्री। और आउट ऑफ दोस आई थिंक 190 था या कुछ ऐसा था, तो वो उन क्रेडिट्स में से हाफ ऑफ द क्रेडिट्स यू हैव टू डू फॉर योर ओन कोर कोर्सेज जो आप डिपार्टमेंट के हैं, लाइक 95 और समथिंग ऐसे 95 क्रेडिट्स करने होते थे। रेस्ट 95 क्रेडिट्स यू डू इन सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़, यू डू सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्टिव्स होते हैं, बहुत दूसरे डिपार्टमेंट के भी कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें कि आप अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसकी स्टडीज़ करते हैं, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू कैन टेक कोर्सेज इन दैट सब्जेक्ट्स, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मुझे याद है कि फिर मैंने एक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का कोर्स था, जो लैंकॉम बोलते थे हम, एंड मिस्टर प्रोफेसर सुरेश उपाध्याय, स्टिल रिमेंबर हिज नेम, वो हमें पढ़ाते थे। और उसमें वो एक्सेंट पढ़ाते थे, मतलब ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, सारे डिफरेंट थे उस तरह का। तो मैंने कहा कि ये कोर्स ले लिया, एंड आई टुक दैट कोर्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जो कोर्स था वो लिया, एंड आई गॉट माई फर्स्ट ए ग्रेड इन दैट कोर्स। सो आई मीन दैट शोज़ कि अगर आपको कोई मन से कोई चीज़ करते हैं, अच्छी लगती है कोई चीज़, तो उसमें देयर बेटर चांसेस कि यू विल परफॉर्म वेल। तो वो फिर लिया, उसके बाद में अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी, देन ग्रेजुअली इट इम्प्रूव। तो किसे कितनी टाइप की लैंग्वेजेस आपने सीखी ओवर द इयर्स? वाज दैट इंस्पिरेशन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस? यस, इनफैक्ट आईआईटी में ही एक मैंने आई जॉइंट फ्रेंच। अच्छा। वो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आई हैव सम फेयर आइडिया ऑफ फ्रेंच, बट बहुत ज़्यादा परसू नहीं कर पाया। बट आईआईटी में मैंने रोमी बोर्जेस के थे, जेएनयू के थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे रोमी बोर्जेस, ही यूज्ड टू कम एंड टीच फ्रेंच। तो फ्रेंच मैंने आईआईटी में ली। आफ्टर दैट इनफैक्ट आई कंटिन्यूड विद फ्रेंच इन लबासना ऑल्सो। अच्छा। मसूरी एकेडमी में देयर वाज लेडी, फ्रेंच लेडी, आई रिमेंबर हर नेम, नैथली सादो। तो शी वॉज टीचिंग फ्रेंच, तो वहाँ पे भी मैंने फ्रेंच ज्वाइन की और फ्रेंच वो किया। सो आई हैव सम आइडिया ऑफ फ्रेंच। माई काडर वॉज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कैडर था, एंड उर्दू इज़ द लैंग्वेज, एंड वेन एवर यू गो टू अ कैडर, तो आपको उस कैडर की लैंग्वेज ऑल इंडिया सर्विसेज में सीखनी पड़ती है। फॉरेस्ट सर्विसेज की बात, फॉरेस्ट सर्विस की बात है। तो वहाँ मुझे लैंग्वेज सीखनी थी, तो वहाँ प्रोबेशन में लैंग्वेज की क्लासेज होती थी, तो वहाँ उर्दू जो है उन्होंने सिखाना शुरू किया। हालांकि उर्दू में, मतलब जब मैं वो सिखाते थे तो मैंने उनको बोलता था, मैं कहता सर आप उर्दू रहने दीजिए, उर्दू तो मैं इन एनी केस अगर जाऊँगा तो वहाँ सीख ही जाऊँगा, उसमें आप तो शेर व शायरी सिखाइए हमें तो वो फिर उन्होंने शेर व शायरी वहाँ होती थी। बट ये बहुत ही बढ़िया। आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस आप रहे हैं इसमें। So what are the some of the most important values that you consider very dear to yourself? Yeah, I actually place lot of importance, in my life to value and character. मुझे लगता है कि जो फोकस है हमारा, जो चाइल्डहुड में होता है, और ये है कि द फोकस इज़ मोर ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस, कि बच्चा अगर एकेडमिकली अच्छा कर रहा है या इज़ गेटिंग 10 out of 10 इन मैथमेटिक्स, तो बड़ा अच्छा वो है। आई थिंक इट इज़ स्लाइटली मिसप्लेस्ड। मतलब एट दैट टाइम प्रॉब्ली हमारे पेरेंट्स ने भी ये किया कि बच्चा करे, अच्छे नंबर आएँ और एकेडमिकली बहुत अच्छा वो हो। बट नाउ in this phase of life I believe that it is very important to inculcate good values and build good character at that time. क्योंकि इन एनी केस अगर आप 2 और 2 4 अगर सेकंड क्लास में बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो थर्ड क्लास में कर लेगा, फोर्थ क्लास सीख ही जाएगा।
बट वैल्यूज़ और कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो अगर 15 साल तक 14 साल तक अगर नहीं हो पाई और वो इनकलकेट नहीं हुई तो उसको फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल है लेटर ऑन इन लाइफ. सो वी हैव टू प्लेस मोर एंड मोर एम्फेसिस ऑन दिस वैल्यू एंड ये वैल्यूज़ लाइक ये honesty. And honesty not in the sense of in terms of money. Honesty in the sense of talking also. For example, if I say ki I'll be here by 11 o'clock, so I should make all efforts to be here at 11. That is the kind of honesty. The importance of discipline in children, trustworthiness, responsiveness, responsibility, ये सारे इस तरह की वैल्यूज़ हैं जो कि बच्चों को और इनकी बहुत ज़रूरत है. और ये शुरू में ही एजुकेशन के मतलब बच्चों को जो सिखाते हैं तो उसमें यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए. और वहाँ मेरे ख्याल से एम्फेसिस होता है, कुछ मॉरल सी क्लासेस होती हैं, बट उतना नहीं होता है जितना कि हमें करना चाहिए. अल्टीमेटली यू मे अचीव एनी मटेरियल पोजीशन इन द सोसाइटी, इन दिस हायरार्किकल सोसाइटी. कोई भी मटेरियल पोजीशन पे आप आ जाएँ, कोई पोजीशन होल्ड कर लें, मे लॉट ऑफ मनी, बट द बॉटम लाइन इज दैट इफ़ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, it's all useless. The first thing is that you should be a good human being, and for that you must have good values and good character, and that starts building in the early age itself. आप जब बच्चे पढ़ रहे हैं उसी में 14-15 में जो होना होता है वो हो चुका होता है, उसके बाद में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस स्टेज पे लाइफ के आने के बाद में मुझे लगता है कि कम फोकस होना चाहिए एकेडमिक्स पर, एक्सीलेंस पे, और ज़्यादा फोकस आदमी को इंसान बनाने पर. ये मॉरल साइंस वगैरह एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, लोग रट के चले जाते हैं, बट वो इनकलकेट नहीं करते अपने अंदर. और इसकी इंपॉर्टेंस बाद में पता लगती है कि यार दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ. वो तो आप कैसे भी कर लोगे, वो ठीक है. करेक्ट. अच्छा, कौन से ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं हु यू आर हाईली इंस्पायर्ड बाय? आई थिंक लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़, लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा तो इन्फ्लुएंस मैं अपनी वाइफ से ही होता हूँ. शी हैज़ चेंज्ड मी अ लॉट. Got it. So, how do you, वैसे आपने मेंशन किया था कि एज एन IRAS ऑफिसर देर आर लॉट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वन ऑफ द पर्क्स, बट रिगार्डलेस आई एम श्योर जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब काम करते हैं तो थोड़ा तो ज़्यादा काम रहता ही होगा. तो हाउ डू यू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस इन सर्टेन ओकेजन्स वेयर देर आर वेरी हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स इन प्लेस एंड देयरफॉर टाइम नहीं मिल पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एट होम? आई टोल्ड यू IRS में इतना issues नहीं है, मतलब it's a good service in the sense that you are able to maintain a very decent of work life balance. क्योंकि एक्चुअली फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो काम है इट इज़ नॉट द फोर फ्रंट ऑफ द ऑपरेशंस. सो बहुत अर्जेंसीज और इमरजेंसीज रेयरली आती हैं. कभी कभी आती हैं कि जिसमें कोई इमीडिएटली आपको अगर कुछ करना है तो उसमें उसको स्क्रूटनाइज करना है किसी को क्योंकि अर्जेंटली चाहिए, बट दोज केसेस आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. So you are able to maintain a good, and that is, I told you, is one of the perks of this service, कि आपका life जो है काफ़ी balanced, you can lead life if you want. Got it. Sir, as we come to the end of the podcast, there's one last section that we have, which is a rapid fire round. So we have some set of questions. Quickly, जो आपके दिमाग में first आएगा वो आप respond करिएगा in the next 1 or 2 seconds, and we'll take it from there. So सर पहला क्वेश्चन है, आर यू मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? सर्टेनली मॉर्निंग पर्सन. ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है. और अगर मैं कभी रात को जगना पड़ गया मुझे, सो आई नो दैट माई नेक्स्ट डे इज रूइंड. मतलब उस पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. एक कौन सी ऐसी सुपर पावर है जो आप चाहेंगे कि आपको मिले? आई डोंट थिंक आई नीड एनी सुपर पावर. So do you prefer phone calls or a text message? I think I would rather pick up a phone call. Make a phone call. What is your favorite cuisine? अच्छा, ये मेरी मदर इन लॉ लड्डू काफ़ी अच्छे बनाती हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है. जी. अच्छा. फर्स्ट क्लास AC टिकट और अ फ्लाइट? फ्लाइट. आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आई थिंक बेन-हर. It's an old movie. मेरे ख्याल से 56-57 की कोई मूवी है, but I have watched it many times and I can still watch it. और the way dialogues have been written and they have been delivered by the lead actors, it's very fascinating and amazing. I like that movie. IRCTC website or mobile application for booking a ticket? IRCTC website I use. आपका फेवरेट रेलवे स्टेशन कौन सा इन इंडिया? Like if you've been around, I'm sure, तो कहाँ पे सबसे अच्छा लगा आपको? थिंक मुझे तो अपना ही रेलवे स्टेशन अच्छा लगता है. जयपुर का वो मेरा पुराना शुरू से मैंने देखा है वो.
And last one, अगर आप IRAS नहीं होते तो what career path would you have taken ahead? So definitely अगर IRS में नहीं होता सिलेक्शन तो I would have been an IFS officer क्योंकि in any case I had an option so I came to IRS. Correct. Thank you so much, Vineet ji, for being here. It was a pleasure talking to you, and I think from your conversation, a lot of interesting insights, would have taken by our viewers, and also काफ़ी कुछ पता चलेगा about railways, about accounting and finance functions of railways, and some of the transformative work that you have been a part of. Any parting last message that you have for our viewers? I think as I've told you, you be good to the society and try to inculcate a habit of, working in terms of systems. And one thing I think I want to tell is that we all have a very heightened sense of, civic entitlements कि मेरा entitlement है ये मेरा ये है मुझे ऐसे चाहिए, but we have a very poor sense of civic duties. तो वो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सोचें कि ठीक है you are entitled for as a citizen of this country, we are entitled for so many things, but at the same time उसको अगर सेंस को हम इम्प्रूव करें तो आई थिंक वी कैन क्रिएट अ बेटर सोसाइटी. आई बिलीव दैट. Thank you so much. Thank you so much, Venkatesh. It has been really nice talking to you and it was a real pleasure. Thank you so much. Pleasure, ours, sir. Thanks a lot for watching this episode of Sushasan. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do not forget to like, share and comment. And for more such content, subscribe to the channel and hit the bell icon.